Hello, good evening. Hello. Good evening, sir. Good evening, Can sir. you, good evening. Can you start the class? Yes, sir. Yes, sir. Okay, sure. So our today's class is yesterday we have already studied about the ecosystem. Today we'll start about the our another the ecosystem to then the energy flow. That means ki how the ecosystem is working. So normally the uh, after the consumer or the producer formation, how they are the forming the structure and the they are how they are working in the energy. Okay. So before that we'll start about the in the pyramids. From the pyramids we start about that see how the energy and the other structures are performing. Okay, so from the consumer level we have studied first the producer. The producer is the generally uh, all of the green plants are present generally. The producer generally green plant when they produce the light energy they are getting from the sunlight, they prepare the photosynthesis. By the photosynthesis process, they prepare all the food matter like the carbohydrate food matter with the water and the carbon dioxide taken from the environment or atmosphere. At that time, one energy is flow. That means the light energy. First, they come the light energy. That means the light energy. That is one kind of physical or the abiotic structure we have already studied. The physical structure they are present light energy. After getting the light energy, the plants or the leaves trap that light in their the chlorophyll or that the chloroplast, that is known as the our generally the greenhouse of or the cooking house of the plant kingdom. Then normally the cooking house or the normally kitchen of the plant kingdom. After the light present in the photosynthetic or chloroplast pigment, the light changes the heat form. The light changes now the heat form. In the heat form, another energy is changed. That means the light is the one energy, then second is the our heat energy. So that means that when the generally the one form to another form when it is changes, that means the one flow of the energy occurs. That means that from producer it gets the energy from sunlight. That means that all of the sunlight as much as we are getting in the environment, most of the sunlight is absorbed by the plant kingdom or the producer level. So that's why the producer is the known as the main absorber of the sunlight in the form of UV light as well as X-ray light. But we are not the capable of observing that light because we have no power because the human beings as well as the animals having the no chlorophyll pigment or the chloroplast present in the animal cell. So that's why they are not getting the our photosynthetic activity. When the water from the nutrient as well as from the carbon dioxide from the environment and the moisture also present in the environment in the water form, minerals from the decomposer and the our or the gas light is coming from the sunlight. They mix together and it forms a carbohydrate or the glucose form that is called the C6H12O6 form. That means one kind of glucose. So that means carbohydrate which we are eating. That is one kind of carbohydrate. So that's why that is known as the first energy is formed from the light energy to heat energy transform. We are talking about the our normally the energy flow. So that's why the energy one changes from the light energy to heat energy. After the heat energy forming, the food is prepared now, and the food in the form of the carbohydrate is prepared. The carbohydrate is generally what we eat. Normally, we get energy by eating the carbohydrate. So most of the food we are taking the carb. That means in the form of rice, wheat also taking. But whenever we require energy as carbohydrate as well as protein is required. But when the carbohydrate form in the normal in our uh, plant kingdom. That is the that food is also used by plant as well as the consumer level. So in the last class we have studied the food material which are prepared by the first plant body will be taken by the first consumer level, which is known as the herbivores. So that means ki they are known as the first consumer. In the consumer level, they will be first consumer. And at that moment, when the energy is taken by any consumer and in the form of food, then it is known as the trophic level. Each
part of the structural biotic part of the ecosystem will be known as the trophic level. That means the producer will be one trophic level because it is also getting energy from the sunlight as well as it is also getting food from the plants because some of the plants are getting from the plants also for the food also like the heterotrophic or the parasitic plant. Then come to the primary consumer. Primary consumer, when they are getting the food, they are taking the directly the carbohydrate food. They are getting the carbohydrate directly the food of the carbohydrate. So after the taking the carbohydrate, the secondary consumer when taking the food or the formation of this food material in the form of carbohydrate that is known as the our प्रोटीन फॉर्म चेंजेस टू द प्रोटीन. अगर यहाँ पे हम लोग एक काव है या कोई गोट है ये अगर घास फूस खाते हैं देन दे आर नोन एज द आवर प्राइमरी कंज्यूमर. सेम टाइम में अगर वही तुम लोग का हम लोग का अगर खाते हैं वही गोट को या काव को अगर ह्यूमन बींग खाते हैं या कोई भी उससे बड़ा एनिमल खा लेते हैं तो दैट मीन्स दिस प्राइमरी कंज्यूमर और हर्बीवर विल बी चेंज टू द आवर प्राइमरी कंज्यूमर टू देन द glucose to protein form will be changed in their body. The glucose will be changed to the protein form will be changed as well as fat will be there because the animal body is prepared from the lipoprotein. Lipid is also known as the lipid is from the fat and the protein is known as the normally protein or the amino acid. So that's why whenever in our body the amino acid is much more, we get the energy or the urination formation is occurs because our body requires the nitrogen. So that's why we need the nitrogen also for the our body. After that, the formation of the first consumer that taken by the second consumer. The second consumer getting the lipoprotein form. That means the first form was the light, second form was the heat, third form now changed to the our carbohydrate. And when the light energy to heat energy, it is the physical form. From the physical to then heat energy to then from the chemical form. So that time it is known as the our generally the chemical energy. That means from the physical energy to chemical energy now changed. So that's a another energy form changed. So whenever the glucose is changed to the protein, again the chemical form is changed required or the energy is transformed in the chemical form. So that's why the changing of the energy is now going on. After the secondary consumer eaten to the first consumer. That means कि secondary consumer में जो थे first consumer खा के उनको मिला है अभी लिपोप्रोटीन और फैट विथ प्रोटीन का एनर्जी मिला है. जब सेकेंडरी कंज्यूमर को थर्ड वाले खाएंगे डायरेक्टली दे विल गेट द हायर प्रोटीन. ज्यादा प्रोटीन मिलेगा उसके साथ साथ ज्यादा फैट भी मिलेंगे. बट यहाँ पे फैट जो होगा यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे. तो दैट मीन्स की सिंपल फैट से अब कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे. तो दैट्स व्हाई द chemical structure of the there of the complex fat will be now changed. So automatically the primary consumer से secondary consumer, secondary consumer से जब tertiary consumer हो जाएंगे वो एक another form of the chemical उनको मिलेगा और energy form मिलेगा. At that moment we can say the energy flow is going on. Same time हम लोग का जब tertiary consumer is eaten by the higher group, automatically they will also get the much more fat. There will be no protein because as much as we have eaten from the plant, it is now digested till the tertiary consumer. So that's why we will get the fat much more during the last stage or the higher stage of the our consumer level. After the death of the when the fourth consumer is death or it is taken by fifth, automatically the fat level will be increased. So that's why the after the fourth or fifth consumer level, it now comes to the tertiary or the sorry, tertiary that means it taken by the decomposer. उनको decomposer खाते जाएंगे क्योंकि हम लोग मर जाएंगे जब तो ऑटोमेटिकली आइदर हम लोग बर्nt होंगे हम लोग को जला देंगे नहीं तो डायरेक्टली हम लोग को गाड़ देते हैं. जब गाड़ देते हैं तो हम लोग को फॉर्मेशन होते हैं हमारे बॉडी में नॉर्मली जो होते हैं हम लोग का बैक्टीरिया फॉर्मेशन करेंगे फंगस ग्रो करेंगे एंड बॉडी को न्यूट्रिएंट को ब्रेक डाउन करेंगे. एट दैट मोमेंट द इट विल बी एनर्जी विल बी नाउ स्टॉप. यहाँ पे एनर्जी फॉर्म चेंज होना
स्टॉप हो जाएगा। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे जब एनर्जी फ्लो हो रहा था, स्टार्टिंग में जो एनर्जी मिला था, हम लोग को जो एनर्जी मिला था फ्रॉम द सनलाइट, वो एनर्जी यहाँ पे चेंज होके फैट में चेंज होके अब न्यूट्रिएंट में फॉर्मेशन हो गया है। सो दैट्स व्हाई द एनर्जी जो ट्रांसफर हो रहा था, तो एनर्जी एक फॉर्म से अनदर फॉर्म चेंज हो रहा है और यहाँ पे स्टॉप हो रहा है। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे हम लोग का एनर्जी वन वे फ्लो हो रहा है, रिसाइकल नहीं हो रहा है, इसलिए इसको एनर्जी साइकिल नहीं बोला जाता है, इसको एनर्जी फ्लो बोला जाता है। दैट्स व्हाई ड्यू टू द एनर्जी फ्लो occurs in a system, so that's why it is known as also dynamics of the ecosystem. The energy flow is also known as dynamics of the ecosystem. That means कि यहाँ पे continuously उनका energy trap होते हैं, फिर changes होते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनते हैं, फिर कार्बोहाइड्रेट ट्रांसपोर्ट होते हैं डिफरेंट कंज्यूमर लेवल में, फिर कंज्यूमर लेवल से डिफरेंट हम लोग का डिकम्पोजर को आते हैं। एट दैट मोमेंट एनर्जी वहां पे खत्म हो जाता है। फॉर द एग्जाम्पल अगर हम लोग देखते हैं, जितना खाना हम लोग खाते हैं, डेली हम लोग खाना खाते हैं, तो मिनिमम हम लोग ब्रेकफास्ट, सुबह हम लोग ब्रेकफास्ट खाते हैं, वो ब्रेकफास्ट खाने के बाद 12 बजे के आसपास हम लोग को लगती है भूख लगती है, क्योंकि हम लोग जितना खाना खाए थे वो डिफरेंट पार्ट, हमारे डिफरेंट बॉडी के डिफरेंट पार्ट में जाके चेंजेस हो गए, डिफरेंट फॉर्म में चेंजेस हो गए, फिर अनदर हम लोग का बॉडी जब होता है वेस्टेज से निकाल देता है। बट वेस्टेज जब निकालते हैं, जो खाए थे वो सेम नहीं है, तो ऑटोमेटिकली जो एनर्जी हम लोग ने लिए थे, तो वही एनर्जी हम लोग नहीं दे रहे हैं, उसका रेसिड्यू दे रहे हैं, इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट दे रहे हैं हम लोग। तो दैट मीन्स हम लोग भी ऑल्सो न्यूट्रिएंट इन द फॉर्म ऑफ, हम लोग नाइट्रोजनस बेस में हम लोग उसको निकाल रहे हैं। तो सेम टाइप पे हम लोग का जब इकोसिस्टम में एक एनर्जी एंट्री करता है, तो लाइट एनर्जी हुआ, लाइट एनर्जी से हीट एनर्जी, हीट एनर्जी से फिर चेंजेस हुआ हम लोग का कार्बोहाइड्रेट एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट एनर्जी से फिर हम लोग का हुआ केमिकल एनर्जी चेंज होके फिर प्रोटीन में फॉर्मेशन हुआ, प्रोटीन फिर चेंज होके हम लोग का आया नॉर्मली हमका फैट में, फैट आके डिकम ब्रेक डाउन किया, ब्रेक डाउन करके फिर हम लोग का नॉर्मली फॉर्मेशन किया, वहां पे टोटली मिट्टी में मिल गया, तो डिकम्पोज हो गया बॉडी, वहां पे डिकम्पोज हो गया। फिर से हम लोग मॉर्निंग हुआ, मॉर्निंग में हम लोग फिर से लाइट ट्रैप किए, लाइट ट्रैप करके एनर्जी फिर हम लोग को मिला, फिर हम लोग वहां पे उसको फिर हम लोग कलेक्ट करने लगे हम लोग एनर्जी। तो एट दैट मोमेंट ये चीजें कंटिन्यू प्रोसेस रहता है फॉर द होल डे। होल डे दैट मीन्स की ये ओनली एनर्जी ट्रांसफर जो होता है वो डे में हम लोग का एनर्जी प्रोडक्शन होता है, बट ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग का डेली हम लोग का होता है, दिन में भी होते हैं रात में भी होते हैं, बिकॉज वी आर ऑल्सो ईटिंग फूड इन द डे टाइम एंड द नाइट टाइम हम लोग भी फूड खाते हैं फ्रॉम द प्लांट प्रोडक्ट as well as the animal product हम लोग खाते हैं। That's why the food energy is also transferred from the whole day, but energy production only day time होते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि हम लोग जो लाइट लेते हैं, तो लाइट लेने के बाद हम लोग जो एनर्जी गेन करते हैं, हम लोग एनर्जी गेन करने के बाद हम लोग कितना एनर्जी हम लोग लेते हैं, कितना सनलाइट से हम लोग लेते हैं, तो वही सनलाइट कितना है हम लोग का, तो ये देखने के लिए हम लोग को क्या है कि यहाँ पे एक मैथमेटिकली हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अभी आते हैं कि एनर्जी फॉर्म में, यहाँ पे दिखा रहा हूं मैं कि एनर्जी जो फॉर्म में, अब यहाँ पे आते हैं मेनली वहां पे फंक्शन देखते हैं, तो क्या इसमें प्रिंसिपल है और इसमें कैसे एनर्जी और कितना एनर्जी ट्रांसफर होता है। नॉर्मली हम लोग को पता चल गया कि एक प्रोड्यूसर को कंज्यूमर खाएगा, कंज्यूमर को फिर डिकम्पोजर खाते हैं। यहाँ पे मैं जो दिखा रहा हूँ देखो, सन से रेडिएंट एनर्जी आए, फिर प्रोड्यूसर मेटाबॉलिज्म किए, केमिकल फॉर्म किए, केमिकल फॉर्म करके फिर हम लोग का हार्बीवोर्स खा रहे हैं, हार्बीवोर्स से हम लोग को हायर जितने कंज्यूमर है वो खा रहे हैं, फिर कंज्यूमर से डिकम्पोज जा रहे हैं। कभी कभी क्या होता है कि प्लांट्स भी डायरेक्ट मर जाता है और प्लांट्स को भी कभी कभी डायरेक्ट डिकम्पोजर खा लेते हैं। दैट टाइम डायरेक्ट केमिकल एनर्जी इज ट्रांसफर टू द आवर नॉर्मली द डिकम्पोजर मिल जाता है। तो कभी कभी यहाँ पे भी देखो हीट एनर्जी दिया है, तो हीट एनर्जी बाहर निकाल रहे हैं, तो दैट मीन्स कि प्लांट जब एनर्जी गेन करता है कुछ एनर्जी छोड़ता है इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसपिरेशन। पानी देते हो मॉर्निंग में, शाम तक देखते हैं पानी खत्म, तो पानी कैसे खत्म हो गया कि प्लांट ऑब्जर्व किया और उसको रेस्पिरेशन करके फिर ट्रांसपिरेशन करके वेपर करके बाहर छोड़ दिया, जो वेपर एटमोस्फेयर में ऊपर जाके फिर वो बारिश की बूंदेबारी बनाने के लिए स्काई में वहां पे उनका क्लाउड फॉर्मेशन करते हैं। तो अब आते हैं एनर्जेटिक्स। बिफोर एनर्जेटिक्स हम लोग और एक देखते हैं कि यहाँ पे एनर्जी जो है हम लोग का रूल क्या है,
कैसे है, एनर्जी कहाँ से आते हैं। यहाँ पे रूल ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो फिजिक्स हम लोग जो पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक्स, यहाँ पे नॉर्मली थर्मोडायनेमिक्स का रूल आते हैं। तो हम लोग पढ़े हैं कि लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उसमें है कि एनर्जी ना कि वो कभी अपने आप बनता है अपने आप डिलीट होते हैं, और ना ही वो एक फॉर्म से अनदर फॉर्म इतने इजीली ट्रांसफर होते हैं। बट यहाँ पे क्या होता है कि एक फॉर्म से अनदर फॉर्म ट्रांसफर हो जा रहे हैं। नॉर्मली हम लोग देखें कि ट्रांसफर नहीं होते, बट यहाँ पे ट्रांसफॉर्म होते हैं। तो दैट मीन्स कि ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, बट इट कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। अभी जो बोले कि हम लोग डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे हैं, ना ही क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि क्रिएशन जो है सनलाइट कर रहा है। सन से हम लोग एनर्जी ऑब्जर्व कर रहे हैं, और वहां पे एनर्जी क्रिएशन हम लोग नहीं कर रहे हैं, नेचर कर रहे हैं। तो हम लोग इसलिए एनर्जी क्रिएट नहीं कर पाते हैं। इसलिए बोला गया है कि इट कैन बी नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। हम लोग ना क्रिएट कर सकते हैं, ना ही हम लोग उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। बट हम लोग उसको एंड करते हैं कहाँ पे, हम लोग डिकम्पोजर लेके उसको न्यूट्रिएंट में फॉर्म चेंज कर देते हैं, उसको न्यूट्रिएंट चेंज फॉर्म कर लेता है। इसलिए यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म होता है। फिर यहाँ पे आते हैं, अनदर आते हैं हम लोग का नॉर्मली कि 10% लॉ। यहाँ पे जब एनर्जी हम लोग लेते हैं, यहाँ पे 10% लॉ क्या है कि 10% लॉ। मैथ में हमने पढ़ा है कि 100 का 10% कितना होगा, 10 होगा। तो लाइक दैट यहाँ पे भी हम लोग जब एनर्जी गेन करते हैं, जितना एनर्जी हम लोग को सनलाइट देता है, टोटल हम लोग ऑब्जर्व नहीं करते हैं। हम लोग को सोचो कि हम लोग कुछ सनलाइट आ रहे हैं, जब हम लोग किसी घर में रहते हैं तो फिर भी सनलाइट आ रहे हैं, तो कम आ रहे हैं, बट बाहर तो ज्यादा गिर रहे हैं, उसको ऑब्जर्व नहीं कर रहे। लाइक दैट हमारे अर्थ में भी जितने भी सनलाइट मिलते हैं, उसको ना ही ह्यूमन बीइंग ना ही प्लांट ऑब्जर्व कर सकते हैं टोटली। ठीक है, अगर टोटली ऑब्जर्व करेंगे सारे जल जाएंगे। तो इसलिए वहां पे एक रूल प्ले होता है कि 10% लॉ, जिसको वो रेमंड लिंडमैन ने उसको प्रिपेयर किया था। उन्होंने बताया कि जितना भी सनलाइट मिलता है हम लोग को, वो एटमॉस्फेयर थ्रो से आते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर एटमॉस्फेयर होके आते हैं। जब यहाँ पे इतने लेयर होते हुए आते हैं, तो ऑटोमेटिकली सन जितना लाइट देता है वो कम होते जाते हैं। एट द एंडिंग ऑफ द जब रीच हो जाता है कि अर्थ में आके गिरते हैं, तो उसमें से भी हम लोग का कुछ यूवी लाइट एक्सरे लाइट कम होते हैं, क्योंकि वहां पे ऊपर में स्ट्रेटोपोज में ओजोन लेयर उनको ब्रेक करता है, उनका जो वे को ब्रेक करता है, ऑब्स्टेकल बन जाता है। इसके लिए कुछ यूवी लाइट और एक्सरे लाइट अंदर आ सकते हैं, और जितने भी आते हैं वो हम लोग का प्लांट ऑब्जर्व कर सकते हैं, एनिमल ऑब्जर्व नहीं कर सकते। तो जितना भी प्लांट ऑब्जर्व करते हैं, उसमें से भी 10% रखता है, बाकी उसको भेज देता है, रिटर्न बैक कर देता है इन द फॉर्म ऑफ रेस्पिरेशन, ट्रांसपिरेशन के थ्रू उसको ब्रेक कर देता है, या उसको रिटर्न बैक कर दे। सोच लो कि हम लोग के पास एनर्जी आया है 1000 किलो जूल, एनर्जी सनलाइट आया है अर्थ में। 1000 किलो जूल लाइट एनर्जी को हम लोग किलो जूल में उसको देखते हैं, उसका जो यूनिट है हम लोग, उसका मेजरमेंट का यूनिट है किलो जूल में देखते हैं। जब 1000 किलो जूल हम लोग का अर्थ में आया है, तो एट द सेम टाइम जब 10% लॉ होगा, तो प्लांट क्या करेगा ना, बस वही 10% में, उनमें से जो 1000 है, उनमें से बस 10% ही वो ऑब्जर्व करेगा। अगर 10% ऑब्जर्व करेगा, तो दैट मीन्स क्या है कि 10 जूल्स फॉर एनर्जी वो ऑब्जर्व कर रहा है, तो वहां से 10% लॉस कर देंगे, 1000 से 10% लॉस कर देंगे। तो वहां पे क्या होगा कि वो ओनली 990 किलो जूल जो होगा, वो रिटर्न बैक कर जाएगा एनवायरमेंट को। एनवायरमेंट को एटमोस्फेयर में हो सकते हैं, कहीं तुम्हारे एटमोस्फेयर से ऊपर भी जा सकते हैं। अगर कभी कभी क्या होता है कि एटमोस्फेयर क्लियर रहेगा, तो ये स्ट्रेटोस्फेयर लेवल तक जा सकते हैं। तो यहाँ पे डायग्राम में भी दिखाया है, देखो कि 1000 जूल्स ऑफ द लाइट एनर्जी जितना है, 10% यूज करते हैं, 990 जूल्स हम लोग रिटर्न बैक कर देते हैं एनवायरमेंट। सेम वही 10% जूल जो होता है, वो प्लांट ने ऑब्जर्व कर लिया। जब वही प्लांट को कोई हर्बीवोर्स खाता है, तो 10% 10 जो जूल हुआ या 10 किलो जूल था, वो इक्विल भी इक्विवेलेंट 100% फॉर द हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स के लिए वो 100% एनर्जी है, तो इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो वो भी क्या करेगा, वो जो 100% की जो है, दैट मीन्स कि 10 किलो जूल है, उसमें से 10% खाएगा या एनर्जी गेन करेगा, बाकी सबको रेसिड्यू करके छोड़ देगा। तो दैट मीन्स कि 10% से वो 1 किलो जूल ऑब्जर्व करेगा, और 9 किलो जूल क्या करेगा, वो रिटर्न बैक कर देगा एनवायरमेंट को। तो क्वेश्चन में ये देखते रहना, जूल दिया है या किलो जूल दिया है। अगर किलो जूल लिख रहे हो तो सारे किलो जूल लिखते रहना, जूल लिख रहे हो तो जूल लिखते देना।
तो 9 जूल जो है रिटर्न बैक कर देता है हर्बीवोर्स। सेम उसका कंज्यूमर लेवल जितने बढ़ते जाएंगे वो 10% लॉ ऑब्जर्व करते जाएंगे, बाकी तुम लोग का 90% उनका रिवर्स बैक करते जाएंगे। एज लाइक दैट यहाँ पे जब एग्जांपल दिया गया है कि एंड में जब देखते हैं तो डिकम्पोजर क्या होता है कि डिकम्पोजर में एनर्जी कुछ नहीं मिला है, बिकॉज कि टेन पर डिकम्पोज जो होता है वो एनर्जी ऑब्जर्व नहीं कर पाते, वो ब्रेक डाउन करते हैं, एनर्जी को ब्रेक डाउन करते हैं, उनको डिफरेंट छोटे छोटे फॉर्म में ब्रेक डाउन करते हैं, मिनरल्स में फॉर्म करते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स में फॉर्म करते हैं। तो दैट्स व्हाई दे डू नॉट डिस्ट्रॉय द एनर्जी नॉर ऑब्जर्व द टोटल एनर्जी, दे जस्ट ब्रेक डाउन इन द स्मॉल फ्रैगमेंट्स करते हैं। सो दैट्स व्हाई अप टू द कंज्यूमर लेवल एनर्जी फ्लो ट्रांसफर होते हैं। यहाँ पे एग्जांपल में देखो 1000 जूल ऑफ लाइट एनर्जी मिला है प्लांट को, वो क्या कर रहा है कि 990 जूल वो बैक कर रहा है उनको एनवायरमेंट को, उसमें से 10 जूल ले रहा है वो नॉर्मली वो डियर ले रहा है, वहां से फिर दिखा रहा है कि 10 जूल अवेलेबल प्रोड्यूसर हो रहा है। प्रोड्यूसर लेने के प्रोड्यूसर को जब लायन खा रहा है, प्राइमरी कंज्यूमर खा रहा है, वो क्या करे ओनली 1 जूल एनर्जी मिल रहा है। तो वो जो 1 जूल एनर्जी है कौन से फॉर्म में मिल रहा है, वो जो नॉर्मली लिपोप्रोटीन फॉर्म में मिल रहा है। और 9 जूल वो नॉर्मली बॉडी का जो है टेम्परेचर है, फिर हम लोग का बॉडी का रेसिड्यू है, इसके थ्रू वो निकाल रहा है, हीट के थ्रू वो निकाल देते हैं। फिर सेम जब लाइन को जो खाता है, लाइन के को कौन खाएगा, लाइन को ऑटोमेटिकली डिकम्पोजर खाते हैं, बट यहाँ पे डिकम्पोजर के टाइम एनर्जी वो ट्रांसफर नहीं होती, एनर्जी ब्रेक डाउन हो जाते हैं। फिर हम लोग जब देखते हैं कि ईच जो होता है प्रोड्यूसर हुआ, कंज्यूमर हुआ, फिर डिकम्पोजर, ईच कंज्यूमर दैट मीन्स कि प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, जितने कंज्यूमर बढ़ते जाएंगे तो सबको जो होता है प्रोड्यूसर से लेके डिकम्पोजर को हम लोग बोलते हैं ट्रॉफिक लेवल। ट्रॉफिक का मीनिंग होता है न्यूट्रिशन लेवल। तो दैट मीन्स कि कौन किसके लिए न्यूट्रिशन बन रहा है, तो ऑन दैट बेसिस हम लोग न्यूट्रिशन लेवल फॉर्मेशन करते हैं, ईच पार्ट को न्यूट्रिशन बोलते हैं। फिर आते हैं स्टैंडिंग क्रब। स्टैंडिंग क्रब क्या है, दैट मीन्स कि एक पर्टिकुलर टाइम पे एक प्रोड्यूसर कितना ग्रो किया है विथ हम लोग का जो लिविंग ऑर्गेनिज्म या एनिमल्स है एक एरिया में, एक उनका एनिमल्स है, उसके साथ साथ उनके लिए कितना हम लोग का प्रोड्यूसर प्रेजेंट है एक एरिया में और एक ही टाइम पे, उसको बोलते हैं स्टैंडिंग क्रब। इसके बारे में हम लोग तो प्रैक्टिकल भी हम लोग पढ़े थे कि स्टैंडिंग क्रब जो है वो नॉर्मली प्लांट्स होते हैं विथ एनिमल्स, अगर एनिमल्स एब्सेंट हो जाएंगे तो वो बायोमास हो जाएगा। तो इसलिए स्टैंडिंग क्रब जो होता है नॉर्मली हम लोग का एनर्जी फॉर्म है। फिर आते हैं हम लोग, ये था हम लोग का एनर्जी ट्रांसफर होते हैं और एनर्जी फ्लो होते हैं। तो यहाँ पे इसलिए कंक्लूजन में देखते हैं कि इट इज ए वन काइंड ऑफ फंक्शनल वे, नॉर्मली ये फंक्शन करते रहते हैं और ये एबायोटिक कंपोनेंट को लेके ही स्टार्ट होगा, क्योंकि लाइट एक एबायोटिक कंपोनेंट है, टेम्परेचर एक एबायोटिक कंपोनेंट है, हीट एक एबायोटिक कंपोनेंट है। तो ऑटोमेटिकली हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि एबायोटिक कंपोनेंट को लेके हम लोग बायोटिक फंक्शन कर रहा है। तो बायोटिक में एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर ट्रॉफिक लेवल, फ्रॉम प्रोड्यूसर टू डिकम्पोजर तक। फिर हम लोग देख रहे हैं कि जो एनर्जी लाइट एनर्जी मिला था प्लांट को एट द एंड ऑफ द इकोसिस्टम, हम लोग देख रहे हैं कि डिकम्पोजर क्या करे, उनको छोटे छोटे पीस में कर रहा है, तो छोटे छोटे फॉर्म में उसको डिकम्पोज कर दे रहा है। तो दैट मीन्स कि एनर्जी फ्लो जो हुआ था इकोसिस्टम में एक ही डायरेक्शन में फॉर्मेशन कर रहा है। बट यहाँ पे अनदर हम लोग देखे थे, जब प्रोड्यूसर से डायरेक्ट हम लोग डिकम्पोजर को एनर्जी ट्रांसफर हो रहे हैं, प्रोड्यूसर से हम लोग डायरेक्ट केमिकल एनर्जी डिकम्पोजर को आ रहे हैं, एट दैट टाइम इसको बोला जाता है वाई सेप्ट हो जाते हैं। तो अगर कोई इकोसिस्टम में डायरेक्ट प्लांट मर के डिकम्पोजर को एनर्जी दे रहा है, एट दैट मोमेंट हम लोग उस इकोसिस्टम को या एनर्जी फ्लो को हम लोग बोलते हैं वाई सेप्ट, हम लोग बोलते हैं। नाइदर हम लोग का डायरेक्ट और द यूनिडिरेक्शनल सेप होते हैं एनर्जी फ्लो। जब एनर्जी फ्लो हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली उसमें से हम लोग देखते हैं कि सन इज द अल्टीमेट एनर्जी, सन ही हम लोग को एनर्जी दे रहे हैं, ना कि हम लोग क्रिएट कर रहे हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। डिस्ट्रॉय कौन कर रहा है, बैक्टीरिया कर रहे हैं, उसको डिफरेंट फॉर्म में उसको डिवाइड कर रहे हैं, ना कि फुल्ली डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, क्योंकि वही जो एनर्जी फॉर्म जो डिफरेंट मिनरल्स या न्यूट्रिशन में दिखवा है वही इनको फिर अगेन वो सॉइल के थ्रू हम लोग का प्लांट ऑब्जर्व करता है। प्लांट्स क्या करते हैं, सोलर एनर्जी को ट्रैपिंग करने में एक वाइटल रोल प्ले करते हैं, और जिसके कारण वो सोलर एनर्जी को हीट एनर्जी से केमिकल एनर्जी, एंड केमिकल एनर्जी जो है ट्रांसफर करता है डिफरेंट हायर ट्रॉपिक लेवल में, चेंजेस होता है
टू फॉर्म ए फूड मटेरियल। देन नाउ हम लोग देखते हैं कि फूड चेन, और फूड वेब को हम लोग देखने से हम लोग देखते हैं कि एनर्जी फ्लो ट्रांसफॉर्म नहीं होता है। अगर फूड चेन नहीं देखेंगे तो एनर्जी फ्लो हम लोग स्टडी नहीं कर पाते हैं। तो ईच स्ट्रक्चर यहाँ पे नेक्स्ट टाइम हम लोग लास्ट टाइम भी हम लोग बताए थे फूड चेन किसको बोलते हैं। ये एक हम लोग का था ग्रासलैंड में था, नंबर ऑफ रेबिट थे, वो स्ट्रक्चर था। यहाँ पे देखो एक फूड चेन है। तो दैट मीन्स कि कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूसर ले रहे हैं, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर ले रहे हैं, कंज्यूमर दैट मीन्स कि माउस से, माउस को खा रहा है कौन, हम लोग का स्नेक खा रहे हैं, स्नेक को टर्सरी कंज्यूमर या ईगल या हम लोग का जो होता है काइट्स खा रहे हैं। तो ये एक इकोसिस्टम हो गया या एक चेन हो गया, फूड चेन हो गया। एट द सेम मोमेंट फ्रॉम प्रोड्यूसर से रैट, रैट को अगर कोई दूसरा खा रहा है, कोई अगर डायरेक्ट हम लोग का खा रहा है, एट द सेम मोमेंट हम लोग का अगर डायरेक्ट काइट और ईगल खा रहे हैं, तो वो भी एक फूड चेन हो जाएगा। एक ही इकोसिस्टम, दैट मीन्स कि ग्रासलैंड इकोसिस्टम में या राइस फील्ड हम लोग का देख रहे हैं, उनके जो इकोसिस्टम टाइप्स में हम लोग देख रहे हैं, अगर दो दो फूड चेन सिस्टम आ रहे हैं, बट टर्सरी लेवल में या तुम लोग का कंज्यूमर लेवल में चेंजेस हो रहे हैं। जब एक ही तुम लोग का सिस्टम या इकोसिस्टम में नंबर ऑफ फूड चेन्स प्रेजेंस रहते हैं, तो और इंटरकनेक्टेड रहते हैं, उसको बोला जाता है फूड वेब। एक से दो अगर फूड चेन हो गए तो उनको बोला जाता है फूड वेब। वेब का मतलब होता है जाल होता है, नेट लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं। तो वही एनर्जी फ्लो में वही चेंजेस होता है कि डायरेक्ट प्लांट से टर्सरी कंज्यूमर भी ले लेता है एनर्जी डायरेक्ट, कभी 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 एनर्जी फ्लो डायरेक्ट हो जाता है, डिकम्पोजर को चले जाते हैं। तो इसलिए नंबर ऑफ फूड चेन फॉर्मेशन हो जाता है एक ही इकोसिस्टम में ड्यूरिंग द एनर्जी फ्लो सिस्टम। सो ऑटोमेटिकली दैट्स व्हाई इट इज नोन एज नंबर ऑफ फूड चेन जब प्रेजेंट रहते हैं एक इकोसिस्टम में, उनको बोला जाता है, हम लोग बोलते हैं फूड वेब। तो फूड चेन और फूड वेब के बिना एनर्जी फ्लो इज नॉट पॉसिबल। तो दैट्स व्हाई द फूड चेन एंड फूड वेब का इंपॉर्टेंस भर भर के होते हैं हम लोग का इकोसिस्टम में। तो स्ट्रक्चरली था, यहाँ पे नंबर ऑफ फंक्शन क्रिएट होते हैं। लाइक दी एनर्जी ट्रांसफर जो होता है एक फंक्शन करता है डायनामिक प्रोसेस से। नॉर्मली हम लोग देखें डायनामिक्स जो होते हैं, क्यों बोलते हैं एनर्जी डायनामिक, बिकॉज हम लोग का एनर्जी जो प्रोडक्शन होता है, हम लोग हाइड्रोस्फीयर या हम लोग का वाटर बॉडी से हम लोग कलेक्ट करते हैं। तो हाइड्रो वाटर बॉडी में जब डायनामो नाम का एक चीज रहता है, डायनामो हमेशा घूमते रहता है, एनर्जी प्रोडक्शन करते रहता है। सो वहां से हम लोग का वह डायनामिक्स आया है। और यहाँ पे एनर्जी कंटिन्यूअसली फॉर्मेशन होता है, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर, कंज्यूमर से अनदर कंज्यूमर एंड अप टू द डिकम्पोजर फॉर्मेशन होते हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डायनामिक्स, बिकॉज डायनामो का काम होता है एनर्जी प्रोडक्शन करना। यहाँ पे भी इकोसिस्टम में तो वही एनर्जी फॉर्मेशन होने का, बट यहाँ पे जो एनर्जी है वो टोटली टोटल लाइफ का, लिविंग लाइफ का एनर्जी फॉर्म होता है। ओके, तो ये था हम लोग का एनर्जी फ्लो सिस्टम में। इसमें कुछ डाउट है तो पूछो, इसमें किसी को डाउट है तो पूछो। हेलो। Yes, sir, no doubt, sir. ओके, तो नेक्स्ट विल गो टू द आवर इकोलॉजिकल पिरामिड्स। पिरामिड देखे हो आप लोग, टीवी में देखे होगे, फोटो में देखे होगे, या उसमें देखते हैं ट्रायंगुलर शेप। हम लोग नॉर्मल देखते हैं ट्रायंगुलर, एक ब्रॉड बेस होता है, एक टिप पोजीशन होता है, ट्रायंगुलर शेप में एक टिप पोजीशन होता है। तो ऑटोमेटिकली हम लोग जब पिरामिड देखते हैं नॉर्मली हर एंगल से देखेंगे तो ट्रायंगुलर रहता है। तो यहाँ पे जब देखते हैं कि स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम को जब हम ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करते हैं, उनके नंबर को, उनको क्वांटिटी को, उनको बिहेवियर को, उनका बायोमास को लेके जब उनको हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, उसको बोला जाता है इकोलॉजिकल पिरामिड्स। तो जनरली जो पिरामिड्स होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं। एक होते हैं पिरामिड ऑफ नंबर्स, देन होते हैं पिरामिड ऑफ बायोमास, देन पिरामिड ऑफ एनर्जी। तो पिरामिड क्या अभी यहाँ पे दिखाया मैंने, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ट्रॉफिक स्ट्रक्चर, दैट मीन्स की न्यूट्रिशन लेवल को हम लोग दिखा रहे हैं। और न्यूट्रिशन लेवल को यहाँ पे प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर में दिखा रहे हैं, उनके क्वांटिटी एज वेल बायोमास और एनर्जी फॉर्म में हम लोग दिखा रहे हैं। तो पहले आते हैं हम लोग पिरामिड ऑफ नंबर्स में। यहाँ पे देखो कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नंबर इंडिविजुअल्स फॉर यूनिट एरिया ऑफ द वेरियस ट्रॉफिक लेवल। एक टाइम पे एक एरिया में कितने प्रोड्यूसर है, कितने कंज्यूमर है, कंज्यूमर में टर्शियरी कितने हैं, सेकेंडरी कितने हैं, प्रोड्यूसर प्राइमरी कंज्यूमर कितने हैं, तो वो देखते हैं। फिर हम लोग डिकम्पोजर को देखते हैं। नॉर्मली डिकम्पोजर का कोई भी इकोसिस्टम में ज्यादा
वाइटल रोल होते नहीं है, ओनली वो ब्रेक डाउन करते हैं, इसलिए उनको हम लोग काउंट नहीं करते हैं क्योंकि दे आर द माइक्रोस्कोपिक हो जाते हैं। तो जो हम लोग देखते हैं उनको हम लोग मोस्टली काउंट करते हैं। तो दैट्स व्हाई यहाँ पे इस एंगुलर स्ट्रक्चर में आप लोग को डिकम्पोजर नहीं दिखेगा, प्रोड्यूसर दिख रहा है और नंबर ऑफ कंज्यूमर्स दिख रहे हैं। डिकम्पोजर्स हम लोग को यहाँ पे नहीं दिखते हैं बिकॉज दे आर द माइक्रोस्कोपिक इन नेचर। तो यहाँ पे जब देखते हैं कि लार्ज नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स टेंड टू फॉर्म द बेस, अगर ज्यादा प्रोड्यूसर है और कंज्यूमर कम है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे बेस जो होगा ब्रॉड बेस में प्रोड्यूसर रहेंगे एंड द टॉप में टर्शियरी या तुम लोग का फोर्थ लेवल कंज्यूमर लेवल रहेंगे। समटाइम्स क्या क्या होते हैं कि कंज्यूमर लेवल बड़े होते हैं और हम लोग का प्रोड्यूसर कम होते हैं, एट दैट मोमेंट द स्ट्रक्चर चेंजेस हो जाते हैं। यहाँ पे देखो दिया है कि शेप ऑफ द पिरामिड नंबर varies from ecosystem to ecosystem. Aquatic ecosystem and the grassland ecosystem. Autotrophs are present in the large numbers per unit area. That means कि producers भर भर के present है और less number of herbivores are the fewer carnivores. That means कि कम होते हैं herbivores, उसके बाद carnivores कम होते हैं। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे aquatic जब देखते हैं तो यहाँ पे डायग्राम देख रहे हैं aquatic में कि नंबर ऑफ प्रोड्यूसर है, उसके बाद algae और डायटम्स जो है उनका नंबर कम है। एट द सेम मोमेंट जू प्लैंकटन जो है वो algae को खाते हैं। algae को खाने के बाद वो जब बन जाते हैं जू प्लैंकटन, यहाँ पे होते हैं वो सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर देखो यहाँ पे 3 दिया है। अब टर्सरी कंज्यूमर में एक लार्ज फिश जो है वो 1 है। दैट मीन्स कि इनका नंबर देखो कितने रिड्यूस होते जा रहे हैं। फर्स्ट प्रोड्यूसर में नंबर ऑफ हम लोग का जो प्लांट्स थे वो भर भर के इसको हम लोग काउंट नहीं कर पा रहे हैं वहां पे। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं algae और डायटम्स, उनका नंबर भी कम हो गया है, प्रोड्यूसर से कम हो गया है। फिर थर्ड स्टेज में देख रहे हैं या सेकेंडरी कंज्यूमर लेवल में देख रहे हैं कि 3 पीसेस हैं। तो 3 पीसेस से वो नॉर्मली हम लोग देख रहे हैं उसको फिर फॉर्मेशन कर रहे हैं, उनको खा रहे हैं कौन, लार्ज फिश। एक लार्ज फिश खा रहे हैं। जब इनको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे देख रहे हैं कि पहले बेस में हम लोग का algae और डायटम्स है, उसके बाद जू प्लैंकटन, उसके बाद हम लोग फिश स्मॉल फिशेस, देन उसके बाद लार्ज फिश आ रहा है। और यहाँ पे टोटली एग्जैक्ट ट्रायंगुलर शेप फॉर्मेशन करने के कारण यहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि पिरामिड ऑफ नंबर फॉर्मेशन कर रहा है। एट द सेम मोमेंट हम लोग देख रहे हैं अनदर वर्सेस, यहाँ पे अनदर फॉर्म में हम लोग देख रहे हैं कि एक हम लोग देख रहे हैं प्रोड्यूसर एक ट्री है, एक ट्री के ऊपर नंबर ऑफ हम लोग का बर्ड्स हम लोग देख रहे हैं। नंबर ऑफ बर्ड्स दैट मीन्स कि हम लोग का भर भर के वेराइटी ऑफ बर्ड्स है। सोच लो कि एक बरगद का पेड़ है, बरगद के पेड़ के ऊपर हम लोग सोचे कि वेराइटी ऑफ बर्ड्स प्रेजेंट है। अब वेराइटी ऑफ बर्ड्स हम लोग नंबर काउंट नहीं कर, सोच लो 100 बर्ड्स है। अब 100 बर्ड्स के ऊपर उनके ऊपर पैरासाइट्स होंगे जो कि थोड़े छोटे छोटे होते हैं, कीड़े होते हैं, या उस प्लेंट के ऊपर भी कीड़े रहेंगे जो कि बर्ड्स को खाते हैं या बर्ड्स के पार्ट को छोटे छोटे जो रेसिड्यू होते हैं उसको खाते हैं, तो उनका नंबर ज्यादा होते जाएगा। फिर पैरासाइट को खाने के लिए हाइपर पैरासाइट्स, उससे स्मॉल छोटे और भी छोटे छोटे होते हैं, पता नहीं चलते हैं, जो कि नाइट को निकलते हैं, वो पैरासाइट्स निकलते हैं, तो उनका नंबर नॉर्मली प्रोड्यूसर से ज्यादा हो जाते हैं क्योंकि दे आर द स्मॉल इन नंबर्स एंड देयर नंबर के लिए यहाँ पे नंबर क्या करेगा, प्रोड्यूसर सिंगल हो जाएगा और कंज्यूमर लेवल जो होगा ब्रॉड हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे पिरामिड क्या करेगा ना, इन्वर्टेड हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि एक देखिए पहले देखिए कि प्रोड्यूसर ऑपराइट है और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि प्रोड्यूसर हम लोग का इन्वर्टेड हो गया है। अनदर यहाँ पे देख रहे हैं राइट साइड में देख रहे हैं पार्टली ऑपराइट पिरामिड ऑफ नंबर। तो पार्टली ऑपराइट में जब देखते हैं कि नंबर ऑफ बर्ड्स हो गए, एक ट्री के ऊपर नंबर ऑफ बर्ड्स प्रेजेंट हुए, बट वहीं पे हम लोग देख रहे हैं कि उन बर्ड्स को कौन खा रहा है, एक ही बड़ा बर्ड्स खा रहे हैं। वहां पे एक बड़ा बर्ड्स रह रहा है, ईगल या कार्ड्स रह रहा है, वो छोटे छोटे बर्ड्स को खा रहे हैं। तो ऑटोमेटिकली वहां पे क्या हुआ ना, ऑपरेट जा रहा था, फिर वहां सॉरी इन्वर्टेड जा रहा था, फिर ऑपरेट हो गया। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक डिस्क्रीट टाइप का हम लोग का चेंजेस हो गया स्ट्रक्चर। यहाँ पे ना ही ऑपरेट हुआ ना ही हम लोग का नॉर्मली इन्वर्टेड टाइप हम लोग का पिरामिड फॉर्मेशन हुआ। तो नॉर्मली हम लोग बोल सकते हैं कि पिरामिड ऑफ नंबर जो है एक ऑपरेट होगा, एक इन्वर्टेड होगा। दैट मीन्स एक ट्रायंगुलर बेस में हम लोग का ब्रॉड बेस में प्रोड्यूसर रह सकते हैं जो कि ऑपरेट करेगा, एक हम लोग का
पॉइंटेड फॉर्म में प्रोड्यूसर रहता है जो कि हम लोग का इन्वर्टेड पिरामिड करेगा नंबर्स का। एट द सेम टाइम जो एडवांटेज देखते हैं कि ये सिंपल इजी मेथड हम लोग काउंट करने के लिए नंबर काउंट करके हम लोग बता सकते हैं कि कितना इकोसिस्टम में कितने बर्ड्स हैं कितना एनिमल्स हैं वो बता सकते हैं। वहीं पे हम लोग देखते हैं कि नंबर ऑफ स्पेसिफिक कैन बी टू ग्रेट टू मेजर एक्यूरेटली। हम लोग का नंबर एक्यूरेट नहीं होता है जो कि एक हम लोग का डिसएडवांटेज है। फिर होता है कि इकोसिस्टम पर टाइम टू टाइम हम लोग का चेंजेस स्टडी करने के लिए ये एक पॉजिटिव हम लोग का होता है। बट सेम एट द टाइम से हम बोल रहे हैं कि जुवेनाइल और इमेच्योर फॉर्म को हम लोग काउंट नहीं करते हैं, जिसके कारण यहाँ पे टोटल एग्जैक्ट नंबर हम लोग को नहीं मिलता है, जिससे स्ट्रक्चर चेंज हो सकते हैं, पिरामिड स्ट्रक्चर चेंज हो सकते हैं, बट हम लोग देखते नहीं है। नेक्स्ट आते हैं बायोमास। तो हम लोग ने बायोमास बताया था कि जो बॉडी में बच जाएगा, एनर्जी बच जाएगा, तो ऑटोमेटिकली तो फाइनल वेट होगा हम लोग का मरने के बाद या टोटल लिविंग में भी होगा, तो इस जो फाइनल वेट होगा वही है हम लोग का बायोमास। तो यहाँ पे देखो नॉर्मली एक स्ट्रक्चर दिया है, सेम हम लोग का प्रोड्यूसर जो है बेस में है, जिसका बायोमास से टोटली 1000 kg। सेम हम लोग जैसे ही एनर्जी 10% ले रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे भी बायोमास देखो रिड्यूस होते जा रहा है 10% 10% में। दैट मीन्स कि 1000 kg प्रोड्यूसर में था, तो हर्बीवोरस ने उनको मिला है 100 kg उनका बायोमास मिला है। फिर हम लोग देख रहे हैं प्राइमरी कार्निवर को 10 kg मिला है। फिर टॉप कार्निवर का बायोमास देख रहे हैं 1 kg। तो यहाँ पे बायोमास जो देख रहे हैं एग्जैक्ट कार्बन फॉर्म जो लिया था प्रोड्यूसर को खाने के बाद, एग्जैक्ट कार्बन फॉर्म में कितना निकल रहा है, तो वो टोटल जो टर्सरी को आते हैं वो रिड्यूस होते जाता है। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे भी जो पिरामिड है वो ट्रायंगुलर शेप कर रहे हैं और इन द ऑपराइट फॉर्म में करें, क्योंकि यहाँ पे प्रोड्यूसर सबसे ज्यादा बायोमास कर रहा है, जिसके कारण ये लोअर में हम लोग का ब्रॉड बेस बनाएगा। सेम टाइम हम लोग का बायोमास अगर एक्वाटिक में देखते हैं, जब एक्वाटिक में देखते हैं हम लोग बायोमास प्रोड्यूसर लेवल में हम लोग का कम होते हैं। जो algae हुआ, डायटम्स हुआ, ये सारे कम होते हैं। उनको स्मॉल फिशेस हुए जो कि प्रॉन हो गए, प्रॉन कभी कभी घास खाते हैं, या तुम लोग algae जो होते हैं उसको खाते हैं, जू प्लैंकटन को खाते हैं, यूग्लिना को खाते हैं, तो ऑटोमेटिकली प्रॉन हो गया या उससे स्मॉल जो फिशेस है वो हर्बीवोरस में आ जाते हैं। फिर उनको कौन खाता है, थोड़ा बिग फिश खाते हैं, तो उनका नंबर ज्यादा बढ़ जाता है। जब फाइनल में देखते हैं टर्शियरी, तो बिग फिशेस मच मोर आ जाते हैं। बट यहाँ पे तुम लोग बोले कि सर यहाँ पे तो 3 फिशेस है, बट उनका वेट देखो ना, उनका जो बायोमास देखो, व्हेल व्हेल एक साथ कितने फिशेस खा लेता है, तो उनका बायोमास तो बहुत ज्यादा निकलेगा। तो ऑटोमेटिकली जो अलजी का था, अलजी का बायोमास अगर 4 ग्राम निकल रहा है, तो ऑटोमेटिकली डबल होते जा रहा है, 4 से 8, 8 से 4 ग्राम होते जा रहा है, या बढ़ते जा रहा है। तो ऑटोमेटिकली जो बायोमास एक्वाटिक में हमेशा जो पिरामिड होता है इन्वर्टेड हो जाता है, बट लैंड में क्या होता है कि ये नॉर्मली हम लोग का ऑपरेट होता है। तो दोनों इकोसिस्टम जो है चेंजेस करते हैं, एक हो जाता है इन्वर्टेड, एक में हो जाता है ऑपरेट। तो इसलिए बोला जाता है कि बायोमास कैन ऑल्सो कैन बी inverted as well as the upright pyramid on the basis of the different ecosystem। अब आते हैं उनका एडवांटेज। जब देखते हैं एडवांटेज में देखते हैं ये क्या करते हैं कि जो नंबर में जो ओवरकम था, नंबर में हम लोग काउंट कर नहीं पाते थे, एग्जैक्ट जुवेनाइल या इमेच्योर को हम लोग काउंट नहीं कर पाते, तो टोटल बायोमास पे हम लोग को पता चल जाता है कितना वेट वहां पे है, अगर कंज्यूमर लेवल में कितना वेट है और प्रोड्यूसर में कितना बायोमास है, तो यहाँ पे एग्जैक्ट पता चल जाता है। वही हम लोग डिसएडवांटेज देखते हैं, तो पॉपुलेशन काउंट करना या मेजर करना एग्जैक्टली वो डिफिकल्ट होता है, वेट करना हम लोग का एग्जैक्ट हम लोग का वेइंग में हम लोग नहीं कर पाते हैं। फिर होता है कि टाइम ऑफ द ईयर दैट बायोमास इज मेजर्ड इन्फ्लुएंसेस रिजल्ट। बिकॉज ट्रीज इन समर वो थोड़ा सूख जाते हैं, पत्ते झड़ जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली उनका बायोमास कम होगा। अगर सेम हम लोग बारिश या विंटर में देखेंगे उनका बायोमास ज्यादा होगा सेम स्पेसिस का। तो दैट्स व्हाई सीजन एज वेल एज ईयर वाइज वो चेंजेस होते रहते हैं। फिर ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम साइज डू नॉट नेसेसरली हैव द सेम एनर्जी। बाहर से दिख रहे होंगे सेम साइज, बट सेम उनका एनर्जी कंटेंट या सेम बायोमास इंफॉर्मेशन होगा बोल के ये कोई तरीका नहीं है। दैट मीन्स ये कोई कंफर्म नहीं है कि उनका सेम होगा बायोमास। सो ऑटोमेटिकली ये एक हम लोग का डिसएडवांटेज है। फिर होता है कि इन्वर्टेड पिरामिड्स जो क्या है वो दिखाता है कि प्रोड्यूसर्स विथ हाई टर्नओवर रेट। दैट मीन्स कि जो हम लोग का टर्सरी कंज्यूमर है वहां पे ज्यादा एनर्जी फॉर्मेशन हो रहा है, बट यहाँ पे कम हो रहा है, बट प्रोड्यूसर इतना एनर्जी फॉर्मेशन नहीं करता है कि जितना टर्सरी वहां पे ले रहा है।
सो दैट्स व्हाई ये एक अनदर डिसएडवांटेज है। फिर आते हैं हम लोग pyramid of energy. It is also a graphical representation of energy and through which profit level of the food chain over a fixed time period. एक फिक्स टाइम पीरियड में फूड चेन में कितने एनर्जी ट्रांसफर हो रहे हैं ये देखते हैं। तो नॉर्मली यहाँ पे ट्रायंगल में हम लोग देख रहे हैं कि प्रोड्यूसर अगर 10,000 किलो कैलोरी एनर्जी फॉर्मेशन कर रहा है तो प्राइमरी कंज्यूमर अकॉर्डिंग टू 10% लॉ वो ओनली 1000 किलो कैलोरी एब्जॉर्ब करेगा। प्राइमरी कंज्यूमर दैट मीन्स की हर्बीवोर्स। एट द सेम मोमेंट हम लोग सेकेंडरी कंज्यूमर जब जाएंगे वो भी हम लोग का 100 किलो कैलोरी अकॉर्डिंग टू हम लोग देखेंगे तो 10% लॉ के हिसाब से एब्जॉर्ब करेगा। एट द सेम ये कंज्यूमर लेवल जितने बढ़ते जाएंगे 10% लॉ के हिसाब से वो कम होते जाएंगे एंड एट द पॉइंट ऑफ द टिप इट विल बी ओनली अ टिप पोजीशन विल बी प्रेजेंट। एंड यहाँ पे क्या होगा कि नॉर्मली जो प्रोड्यूसर है वो एनर्जी जितना ज्यादा करता है वो ऑटोमेटिकली उनका बेस ब्रॉड होता है। और प्रोड्यूसर ही एक ही चीज है ऑर्गेनिज्म है जो एनर्जी को ऑब्जर्व कर सकता है, सबसे ज्यादा एनर्जी को ऑब्जर्व कर सकता है। यहाँ पे ऊपर में जो इन्वर्टेड वाला हम लोग देखे थे एनर्जी बा हम लोग का पिरामिड, हम लोग का जो बायोमास पिरामिड में हम लोग देखे थे कि लोअर में हम लोग देख रहे हैं कि इन्वर्टेड वाला देख रहे हैं, यहाँ पे जो इन्वर्टेड देख रहे हैं यहाँ पे भी algae जितना एनर्जी प्रोडक्शन करेगा वो सनलाइट से डायरेक्ट एब्जॉर्ब किया होगा, तो इसलिए algae सबसे ज्यादा ही एब्जॉर्ब करेगा। बट यहाँ पे जो कार्निवर टॉप कार्निवर 12 ग्राम का दिया है उनका जो बायोमास, वो जितने बायोमास हो बट एनर्जी ट्रांसफर के टाइम इनके पास सबसे कम एनर्जी आएंगे। जो सबसे ऊपर रहेंगे कंज्यूमर लेवल में वो सबसे कम एनर्जी उनको मिलेगा। सो दैट्स द एनर्जी पिरामिड इज ऑलवेज अपराइट, कभी वो इन्वर्टेड नहीं होगा, वो हमेशा अपराइट रहते हैं। ये क्वेश्चन आते हैं कि डिस्क्राइब व्हाई पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट, क्योंकि जो ग्रीन प्लांट होगा वो algae हो ट्री हो ग्रास हो जो भी हो वो ही ओनली ऑब्जर्व कर सकते हैं सबसे ज्यादा लाइट एनर्जी, जिसके थ्रू वो एनर्जी ट्रांसफर करने के रेडी हो जाते हैं थ्रू केमिकल एनर्जी। सो दैट्स द पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट। यहाँ पे देखो अनदर दिखा रहे हैं कि हम लोग प्लांट जो है 10,000 जूल मिल रहा है, फिर उसको प्राइमरी कंज्यूमर जो लोकुस्ट है उसको मिल रहा है 1000, उनको फिर खा रहे हैं रैट खा रहे हैं 100 जूल, फिर टर्सरी कंज्यूमर 10 जूल। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे भी ऑटोमेटिकली एनर्जी चेंजेस होते जा रहे हैं। तो यहाँ पे नॉर्मली क्या होता है कि 10% ऑफ द एनर्जी इज एब्जॉर्ब और अवेलेबल फॉर द ईच ट्रॉपिक लेवल। जितना भी एनर्जी आपको मिल रहा है उसमें से 10% ही आप ले सकते हो, उससे ज्यादा आप नहीं ले सकते। 10% से कम ले सकते हैं बट 10% से ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हो, ये ऑटोमेटिकली नेचुरल लॉ है। सो दैट्स व्हाई जब नेट प्रोडक्शन और रेस्पिरेशन होते हैं तो एनर्जी लेवल क्या कहते हैं वही 10% के अंदर ही हम लोग काउंट करते हैं, तब जाके हम लोग को पता चलता है कि कितना एनर्जी वो ऑब्जर्व किया है। तो इसलिए बोला जाता है कि एनर्जी लेवल इज ऑलवेज हमेशा एक ऑपरेट पोजीशन है। उनसे भी हम लोग डिसएडवांटेज एडवांटेज है। नो इन्वर्टेड पिरामिड्स आर ऑब्टेन इन द और नो एनर्जी पिरामिड्स ऑन द इन्वर्टेड फॉर्म फाउंड इन द एनर्जी पिरामिड। उसके साथ एक्चुअल एनर्जी ट्रांसफॉर्म होते हैं एंड अलाउज रेट ऑफ प्रोडक्शन। हम लोग का एनर्जी जो है सनलाइट जो है एग्जैक्ट ट्रांसफॉर्म होता है सनलाइट से हीट, हीट से टेम्परेचर, टेम्परेचर फिर कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट से लिपोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन प्रोटीन फैट, वो चेंजेस होते रहते हैं। फिर हम लोग का जो है कंपेयर डिफरेंट इकोसिस्टम्स बेस्ड ऑन रिलेटिव एनर्जी फ्लो। हम लोग बोल सकते हैं कि डिफरेंट इकोसिस्टम से डिफरेंट एनर्जी फॉर्म होते हैं। जैसे कि फॉरेस्ट में सबसे ज्यादा एनर्जी मिलता है प्लांट्स को इन शुद्ध हम लोग का जो पॉन्ड वाटर में, रिवर वाटर या हम लोग का जो सी है, सी में सबसे एनर्जी ऑब्जर्व होता है, सी एनर्जी प्रोडक्शन होते हैं इन द सी में। अगर सी और फॉरेस्ट को देखेंगे, अगर फॉरेस्ट और पॉन्ड को देख रहे हैं तो फॉरेस्ट में सबसे ज्यादा एनर्जी प्रोडक्शन या एनर्जी ट्रांसफर हो रहे हैं क्योंकि वहां पे बड़े बड़े ट्रीज है। बट जो पॉन्ड है पॉन्ड में लिमिटेड नंबर ऑफ ग्रीन प्लांट्स और द फाइटोप्लैंक्टन्स रहते हैं। उसके बाद अगर देखते हैं डिसएडवांटेज, इट इज डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लेक्स टू कलेक्ट एनर्जी डाटा रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन ओवर टाइम। हम लोग का बायोमास स्टडी करते के टाइम ऑलवेज हम लोग एनर्जी काउंट नहीं कर पाते हैं क्योंकि बायोमास चेंजेस होते जाते हैं, इसलिए एनर्जी भी चेंजेस हो जाते हैं कभी कभी। और क्या होता है कि जो स्पेसिस दिया जाता है स्पेसिफिक टॉपिक लेवल में चेंजेस होते हैं, तो वहां पे जो स्पेसिस होते हैं वो चेंज कर जाते हैं, कभी कभी टर्शियरी में जो होना चाहिए वो सेकेंडरी में आ जाते हैं। एट दैट मोमेंट द एनर्जी ट्रांसफर ऑल्सो चेंजेस और रिफ्लेक्शन दिखाता है, वहां पे थोड़ा चेंजेस होते रहते हैं, तो इसलिए वहां पे ये एक डिसएडवांटेज हो गया।
तो दैट मीन्स हम लोग ने देखा कि इकोलॉजिकल पिरामिड जो है हम लोग को एक क्लियर इंफॉर्मेशन दे रहा है कि ट्रॉफिक स्ट्रक्चर दैट मीन्स की फूड चेन फूड वेब और जो न्यूट्रिशन स्ट्रक्चर के बारे में बता रहे हैं, जिसके थ्रू हाउ द फूड इज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम द वन प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर and then the decomposition. After that, when the transfer of the food is transforming, so automatically the energy is also transformed from the normal light energy to the food energy form, and then the ATP is transferred from the body to body from one consumer to consumer level, and through the along with the our the number and the biomass ecosystem. सो ये जो है हम लोग का ट्रॉफिक स्ट्रक्चर बता रहा है कि इकोसिस्टम डिफरेंट स्टेबल फैक्टर्स के कारण चेंज होता है, तो ऑटोमेटिकली हम लोग का पिरामिड भी चेंज हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई द पिरामिड आल्सो द क्या बोलते हैं हम लोग बोल सकते हैं कि एनवायरमेंट फैक्टर के साथ ये प्रोपोर्शनल होते हैं। तो ये था हम लोग का इकोलॉजिकल पिरामिड था। तो इसमें कुछ डाउट है तो पूछो। यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, पिरामिड सारे पिरामिड्स को मिक्स करके एक लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये वाला चीज देखते रहना कि इंपॉर्टेंट है ये। अगर कोई डाउट है तो पूछो उसमें। पिरामिड जो है एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, एनर्जी फ्लो एक लॉन्ग क्वेश्चन, एनर्जी फ्लो में एक क्वेश्चन आएगा डिस्क्राइब द 10% लॉ इन द एनर्जी फ्लो एंड व्हाई इट इज यूनिडायरेक्शनल, ये करके एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। नहीं तो डिस्क्राइब द एनर्जी डायनामिक्स विथ रेफरेंस टू इकोलॉजिकल पिरामिड्स। जब विथ रेफरेंस टू इकोलॉजिकल पिरामिड्स आ जाएगा तब आपको वहां पे दिखाना है कि हाउ द एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम द structure to structure or the producer to consumer then consumer to decomposer with ecological pyramid। वहां पे 10% लॉ के बारे में बताना जरूरी नहीं है, ओनली बताना है कि एक फॉर्म से अनदर फॉर्म हाउ द एनर्जी इज ट्रांसफॉर्मिंग। ओके, ये से लॉन्ग क्वेश्चन आ सकते हैं, नहीं तो शॉर्ट क्वेश्चन में डायरेक्ट इकोलॉजिकल पिरामिड आएंगे। ओके, एनी डाउट है तो पूछो आप। हेलो, कोई डाउट नहीं है? हेलो, हेलो। Yes, no doubt, sir. ओके, ओके, तो अनदर हम लोग देख रहे हैं, अनदर है हम लोग का केमिकल साइकिल्स। इसमें से भी एक लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है कि बायोजियो केमिकल साइकिल्स। तो यहाँ पे तीन वर्ड है, एक है बायोलॉजिकल, जियोलॉजिकल एंड केमिकल। तो दैट मीन्स ये तीनों एक साथ इन्वॉल्व करेंगे। केमिकल जो केमिकल गैसेस हम लोग देखते हैं ये मटेरियल्स होते हैं। बायोलॉजिकल दैट मीन्स की लिविंग ऑर्गेनिज्म विल बी इन्वॉल्व। एंड जियोलॉजिकल, जियोलॉजिकल दैट मीन्स में रॉक हो सकते हैं, सॉइल हो सकते हैं, ये सारे चीज इन्वॉल्वमेंट होंगे और तीनों एक साथ होंगे। इनमें से बायोलॉजिकल जो है बायोटिक कंपोनेंट है, केमिकल एंड जियोलॉजिकल जो है वो नॉर्मली है एबायोटिक कंपोनेंट। तो केमिकल जो है नॉर्मली एटमोस्फेयर में प्रेजेंट रहते हैं, सॉइल में भी प्रेजेंट रहते हैं, दैट मीन्स की एटमोस्फेयर एज वेल एज लिथोस्फेयर में प्रेजेंट रहते हैं। एंड द जियोलॉजिकल जो है वो टोटली हम लोग का वो होता है हाइड्रोस्फीयर एज वेल एज लिथोस्फीयर में प्रेजेंट रहता है। अब बोलो सर हाइड्रोस्फीयर तो पानी है, पानी में कहाँ से आएंगे? तो हाइड्रोस्फीयर में नॉर्मली वो लोग प्रेजेंट भी होते हैं इन द लोअर पार्ट में। तो यहाँ पे जब देखते हैं कि साइकिल इज ए सीरीज ऑफ चेंज व्हिच कम्स बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट एंड व्हिच कैन बी रिपीटेड। दैट मीन्स कि जहां से एक केमिकल ट्रांसफर हुआ था वो एंड भी वही फॉर्म में होगा। तो दैट मीन्स कि दैट इज कॉल्ड द हम लोग का न्यूट्रिएंट बायोजियोकेमिकल साइकिल और न्यूट्रिएंट साइकिल। जैसे हम लोग फूड खा रहे हैं, ग्लूकोज खा रहे हैं, तो हमारे बॉडी में नाइट्रोजन बॉडी में आ गया, तो नाइट्रोजन यूटिलाइज होगा, प्रोटीन यूटिलाइज होगा। प्रोटीन इज वन काइंड ऑफ नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड। तो अमीनो एसिड जैसे यूटिलाइज होगा, हम लोग यूटिलाइज करने के बाद फिर रेसिड्यू जो निकालेंगे दैट इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ हम लोग का जो होता है यूरिक एसिड और यूरिनेशन होता है, वो वहां पे भी नाइट्रोजनस बेस से हम लोग निकाले। दैट मीन्स कि नाइट्रोजन फूड को हम लोग लिए हैं इन द हेल्प ऑफ ग्लूकोज, एंड उसको खाने के बाद हम लोग भी बॉडी से जो निकाल रहे हैं वो भी नाइट्रोजन है। तो यहाँ पे जो लाइन दिया है कि साइकिल इज अ सीरीज चेंज व्हिच कम्स बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट एंड व्हिच कैन बी रिपीटेड। तो यहाँ पे अगर डेफिनेशन देखेंगे, द मोर और लेस सर्कुलर pathways in the essential elements transferred through the protoplasm circulate in the biosphere from environment to organism and back to the environment known as the biogeochemical cycle। ये environment से आएगा हम लोग का बायोटिक कंपोनेंट को through the cell protoplasm as well as the cytoplasm present, then again it will be come back to the environment। Okay,
It is also known as the hot equilibrium states. इक्विलिब्रियम स्टेट दैट मीन्स इक्विवेलेंस करेगा, तो नॉर्मली एक फॉर्म में आएगा तो अनदर फॉर्म में जो करेंगे तो इक्विवेलेंस होगा। C6H12O6 कैसे फॉर्मेशन हो रहा है, 6CO2 6 कार्बन डाइऑक्साइड जब मिलते हैं तब जाके हम लोग का लाइट आने के बाद C6H12O6 जो कि ग्लूकोज फॉर्म में फॉर्मेशन करते हैं एनर्जी में, तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम होता है, दोनों साइड हम लोग का नंबर इक्विलिब्रियम होता है। तो बायोकेमिकल साइकिल जो है वो डिस्क्राइब करता है मूवमेंट्स ऑफ द सब्सटेंसेस इन द एंटायर ग्लोब एंड द स्टडी ऑफ दिस इन मल्टीडिसिप्लिनरी फॉर्म में। हम लोग का यहाँ पे साइकिल फॉर्म में ट्रांसफर करेंगे, बट यहाँ पे नंबर ऑफ मल्टीडिसिप्लिनरी अटैच हो गए, नंबर ऑफ गैसेस एक साथ फॉर्मेशन करेंगे, नंबर ऑफ स्ट्रक्चर एक साथ आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कि क्या क्या एलिमेंट हम लोग का ट्रांसफर होते हैं। एक होता है मैक्रो एलिमेंट और एक होता है माइक्रो एलिमेंट। तो मैक्रो एलिमेंट दैट मीन्स कि जिनका साइज बड़े बड़े होते हैं, तो आप बोलोगे सर हम लोग के पत्थर ईंट जो खा रहे हैं वो खाते हैं, वो भी हो सकते हैं मिनरल्स। वो नहीं, हम लोग का जो देखते हैं कि हमारे बॉडी के लिए हमारे जो पाथवे सेल के थ्रू जो एंट्री करेगा, वह प्लांट के सेल के थ्रू जो एंट्री करेगा या रूट के थ्रू जो एंट्री करेगा, वो के रूट के थ्रू उनका साइज स्मॉल पोर है और वहां पे एक बड़ा सा न्यूट्रिएंट है, वो जा नहीं पाएगा। एट दैट मोमेंट वहां पे उसको बोला जाता है मैक्रो न्यूट्रिएंट। उसको ब्रेक डाउन करके वो छोटे छोटे पीसेस में जब प्लांट ऑब्जर्व करता है, उसको फिर हम लोग न्यूट्रिएंट फॉर्म में हम लोग भी ऑब्जर्व करते हैं। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट जो होता है ये लार्ज फॉर्म में सबसे ज्यादा चाहिए, भर भर के चाहिए, जितना ज्यादा अमाउंट होगा वो प्लांट के लिए अच्छा होगा, इसलिए उनको बोला जाता है मैक्रोन्यूट्रिएंट। जिसमें से हम लोग को इम्पोर्टेंट है सबसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस। यहाँ पे लिखा है कि सिक्स दिया है, सिक्स में क्या है कि अनदर एक जो फॉर्म है वो वाटर विथ आयरन रहता है। आयरन भी हम लोग के इम्पोर्टेंट रहता है, बट आयरन जो है कि न्यूट्रल है। आयरन आइदर हम लोग मैक्रो भी हो सकता है, माइक्रो भी हो सकता है। कुछ कुछ प्लांट को आयरन ज्यादा चाहिए, कुछ कुछ को कम चाहिए, इसलिए ये एक इंटर डिसिप्लिन है, माइक्रो में भी है और मैक्रो में भी है। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि बिग सिक्स जो है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड हम लोग का आयरन होता है। और इन मैक्रोन्यूट्रिएंट से सबसे ज्यादा हम लोग को नाइट्रोजन चाहिए, उसके बाद हम लोग को चाहिए कार्बन, उसके बाद हम लोग को फास्फोरस, देन ऑक्सीजन, देन लास्ट में हाइड्रोजन हम लोग को चाहिए। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमेशा वाटर फॉर्म में रहते हैं। नेक्स्ट आते हैं सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम। ये भी अनदर मैक्रोन्यूट्रिएंट है जो कम अमाउंट में चाहिए। ठीक है, आफ्टर नाइट्रोजन, फास्फोरस। तो इसलिए बोला जाता है कि हम लोग जो बोलते हैं एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम, तो दैट मीन्स कि नाइट्रोजन पहले सबसे ज्यादा चाहिए, देन फास्फोरस, देन पोटेशियम चाहिए। इसके लिए हम लोग एनपीके बोला जाता है। एन स्टैंड्स फॉर नाइट्रोजन, पी फॉर द फास्फोरस एंड के फॉर द पोटेशियम रहते हैं। तो ये था हम लोग का मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। अब आते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की तरफ। जब माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं ये प्लांट्स को कम अमाउंट में चाहिए। तो हम लोग को जैसे कि हम लोग को बोलते हैं सॉल्ट कम चाहिए, तो सॉल्ट भी हम लोग के लिए एक न्यूट्रिएंट है, और सॉल्ट ज्यादा खाएंगे तो हम लोग का बोन हम लोग का क्या वीक हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग को बॉडी में जो आयोडीन की मात्रा है उसको भरने के लिए, उसका जो अमाउंट है उसको हमेशा फुलफिल करने के लिए हम लोग सॉल्ट को एक लिमिटेड अमाउंट में हम लोग खाते हैं। लाइक दैट प्लांट्स भी होते हैं कि कुछ कुछ मिनरल्स को लिमिटेड फॉर्म में लेते हैं जो कि होते हैं सॉल्ट फॉर्म में, उनको बोला जाता है माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं। उनको चाहिए बट ये इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं भी दोगे तो जिंदा रहेंगे। ठीक है, उनमें से एक है बोरोन है, कॉपर है, मोलिब्डेनम है और आयरन भी है। आयरन भी ऑल्सो प्रेजेंट इन द प्लांट जो है नॉर्मली, एक बोला था जैसे कि मैक्रो एंड माइक्रो में दोनों में रहते हैं। अब आते हैं हम लोग टाइप ऑफ द बायोकेमिकल साइकिल। बायोकेमिकल से जो टाइप देखते हैं ये डिफरेंट फॉर्म में होते हैं। एक होते हैं वाटर फॉर्म में, एक होते हैं गैसेस फॉर्म में। तो गैसेस फॉर्म में हम लोग का जो होता है गैस को लेके जाता है, डायरेक्ट गैस को लेके हम लोग जब डिफरेंशिएट करते हैं ये साइकिल फॉर्मेशन होता है, उसको बोला जाता है हम लोग नॉर्मल बोलते हैं गैसेस साइकिल। इन गैसेस साइकिल दैट मीन्स कि एटमॉस्फेयर में जो जो गैस है वही सब सारे साइकिल फॉर्म में डेवलप करेंगे और उनको बोलेंगे हम लोग नॉर्मली गैसेस साइकिल। और क्या क्या गैसेस साइकिल हम लोग का, यहाँ पे देखो, नाइट्रोजन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल एंड वाटर साइकिल। अब बोले सर वाटर तो एक वाटर लिक्विड फॉर्म है, फिर वहां पे वो कैसे आएगा गैसेस फॉर्म में। ये जो वाटर साइकिल है ये नॉर्मली हम लोग का गैसेस फॉर्म के साथ हमेशा अटैच होता है, क्योंकि वाटर साइकिल क्या होता है हम लोग देखते हैं कि लास्ट क्लास भी हम लोग देखे थे कि वाटर ट्रांसपिरेशन के थ्रू प्लांट से ऊपर जा रहे हैं, ह्यूमन बीइंग के बॉडी से स्वेटिंग के थ्रू भी ऑल्सो वेपर होके ऊपर जा रहे हैं, और ऊपर जाके ये यहाँ पे जब कूलिंग डाउन होते हैं ये क्लाउड फॉर्मेशन करते हैं।
जब क्लाउड फॉर्मेशन करते हैं और ज्यादा कूल हो जाता है तो ऑटोमेटिकली ये वाटर फॉर्म में कम बैक करते हैं, उसको हम लोग बारिश बोलते हैं। फिर वाटर फॉर्म कमिंग बैक टू द अर्थ इन द फॉर्म रेन एंड ट्रांसफर टू द सी ओशियन ओवर। तुम लोग का जितने भी ओपन फील्ड है या ओपन सर्फेसेस वाला जितने भी पार्ट लाइक द रिवर से पॉन्ड है, वहां पे पानी भर जाता है। फिर अगेन वो प्लांट के पानी वहां पे भरने के बाद कुछ पानी होता है कि ग्राउंड वाटर में ऑब्जर्व हो जाता है, जिसको प्लांट फिर अगेन ऑब्जर्व करके ट्रांसमिशन करके ऊपर छोड़ता है, जिसके थ्रू इवेपोरेशन होते हैं। तो ऑटोमेटिकली वाटर एक साइकिल कंटिन्यूसली चलते रहता है, जिसको हम लोग वाटर साइकिल बोलते हैं। जब वाटर साइकिल होते हैं ऑटोमेटिकली एट दैट मोमेंट ऑक्सीजन साइकिल विल बी देयर, बिकॉज ऑक्सीजन साइकिल इज दी रिलेटेड टू द our water. From the water oxygen will be developed. ये था गैसेस इन वाटर साइकिल। अब एक एक करके आएंगे। पहले देखते हैं, अभी गैसेस के बाद हम लोग देख रहे हैं कि सेडिमेंटरी साइकिल। सेडिमेंट्स पीसेस, बड़े बड़े पीसेस में हम लोग देख रहे हैं, पत्थर के थ्रू देख रहे हैं, तो एट दैट टाइम इसको बोलते हैं सेडिमेंट्स। जैसे कि ये फॉस्फोरस साइकिल, सल्फर साइकिल, आयरन साइकिल, कैल्शियम साइकिल, ये सारे चीज हम लोग ओर फॉर्म में मिल रहा है। हम लोग नेचर में ओर फॉर्म या पत्थर से हम लोग को मिल रहा है, जिसको लाके हम लोग पिघला के फिर हम लोग यूज करते हैं। नाइदर हम लोग पत्थर जो है फॉस्फोरस, फॉस्फोरस को पाउडर फॉर्म में हम लोग यूज करते हैं। और इसको ये हम लोग का जितने भी रॉक है, रॉक फॉर्म में हम लोग को ये मिलेंगे, इसलिए इसको रॉक सेडिमेंट्स जो है उसको अनदर फॉर्म में रॉक्स। अब आते हैं हम लोग नॉर्मली नाइट्रोजन साइकिल को देखते हैं। मेजोरिटी ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जनरली 78% होगा, 72 से 78% हम लोग का नाइट्रोजन चाहिए। तो एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है वह उसको हम लोग डायरेक्टली यूज नहीं कर पाएंगे। इसके लिए प्लांट इज इम्पोर्टेंट। तो इसके लिए क्या करते हैं कि दो टाइप का हम लोग का फॉर्मेशन होता है, एक होता है फिजिकल नाइट्रोजन फॉर्मेशन करेगा, एक बायोलॉजिकली फॉर्मेशन करते हैं। फिजिकली क्या करते हैं, तो नॉर्मली जब लाइटनिंग होते हैं, जो हम लोग बोलते हैं कि थंडरिंग हो रहे हैं, एट दैट मोमेंट वो लाइटनिंग क्या करता है ना, ब्रेक डाउन करता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रिक एसिड से। नाइट्रिक एसिड क्या करेगा, नाइट्रेट फॉर्मेशन करेगा, नाइट्रेट से एमोनिया फॉर्मेशन होगा। इवन एमोनिया विल बी ऑब्जर्व इन द सॉइल बाय द प्लांट्स। एमोनिया वहां पे प्लांट के थ्रू ऑब्जर्व हो जाता है। एट दैट मोमेंट वी से इट इज द फिजिकल वे, दैट मीन्स की नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ द एनिमल्स और द प्लांट्स और एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओनली वहां पे क्या पे सॉइल में जब होता है ऑब्जर्व होता है, वहां से प्लांट ऑब्जर्व करके फूड में बनाता है। तो दैट से मेन बता सकते हैं जब थंडरिंग हो रहा है, तो जब भी थंडरिंग होगा वहां पे नंबर ऑफ नाइट्रोजन हम लोग का ऑब्जर्व होता है, फॉर्म चेंजेस फ्रॉम द हम लोग नाइट्रोजन टू द नॉर्मली एमोनिया पे फॉर्मेशन हो जाते हैं। तो यहाँ पे दिया कि नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन द एनवायरमेंट वाइड वेराइटी ऑफ केमिकल फॉर्म्स इंक्लूडिंग ऑर्गेनिक नाइट्रोजन, अमोनियम नाइट्रेट, नाइट्रेट, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड और इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का डिफरेंट फॉर्म में प्रेजेंट है। जब उसको हम लोग ऑब्जर्व करते हैं तब फिर अगेन हमारे बॉडी में नाइट्रोजन आता है। So organic nitrogen may be in the form of living organism, humus or in the intermediate products of the organic matter decomposition. जब डिकम्पोज करेगा तब वहां पे नाइट्रोजन डिकम्पोज फॉर्मेशन होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक नाइट्रोजन। ऑर्गेनिक दैट मीन्स कि नेचुरली हम लोग का नाइट्रोजन फॉर्मेशन हुआ है। The process of nitrogen cycle transform nitrogen from one form to the another and carried by the microbes. Generally माइक्रोबायोलॉजिकल और माइक्रोब्स जितने हैं वो यूज करते हैं, वो ट्रांसफर करते हैं। जब माइक्रोबायोलॉजी या बैक्टीरिया ऑब्जर्व करते हैं नाइट्रोजन, एट दैट टाइम वो माइक्रोबायोलॉजी जो यूज होते हैं, एट दैट टाइम वही नाइट्रोजन साइकिल को हम लोग बोलते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। फिजिकल हुआ तो थंडरिंग के कारण जब नाइट्रोजन फिक्स हुआ उसको बोलते हैं फिजिकल। जब माइक्रोबायोलॉजी और लिविंग ऑर्गेनिज्म थ्रू में हो रहा है इसलिए उसको बोला जा रहा है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो यहाँ पे देखो दिया है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है नाइट्रोजन टू एमोनिया और नाइट्रेट फॉर्म में होगा। नाइट्रिफिकेशन में क्या होगा, एमोनिया टू नाइट्रेट फॉर्मेशन करेगा। एसिमिलेशन में क्या होगा, ये ब्रेकडाउन ऑफ द एमोनिया टू नाइट्रेट होगा इनटू बायोलॉजिकल इश्यूज। फिर अमोनिफिकेशन में ऑर्गेनिक नाइट्रोजन से एमोनिया फॉर्मेशन करेंगे। डीनाइट्रिफिकेशन से नाइट्रेट से नाइट्राइट फॉर्मेशन होते हैं। एट दैट मीन्स कि नाइट्रोजन एक फॉर्म से अनदर फॉर्म ब्रेकडाउन करेगा अकॉर्डिंग टू द प्लांट्स एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ द माइक्रोब्स। माइक्रोब्स क्या है उसको बेस करके नाइट्रोजन ब्रेकडाउन करेगा और अपना स्ट्रक्चर चेंज करेगा। तो यहाँ पे जैसे बताया कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स्ड इन द यूजेबल फॉर्म टेकन बाय द प्लांट्स मोस्टली बाय द अजाडिबैक्टर एंड द क्लोस्ट्रिडियम और सिम्बायोटिक राइजोबियम बाय द डाइजेट्रप्स। यहाँ पे राइट साइड में आप लोग देख सकते हो एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बना है,
रूट में देखो राउंड और स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर बना है, दैट इज द प्रेजेंस ऑफ द होम ऑफ द बैक्टीरिया। वहां पे बैक्टीरिया भर भर के हैं जो कि एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को लेके यहाँ पे प्लांट के थ्रू ऑब्जर्व कराते हैं। प्लांट को नाइट्रोजन यहाँ पे वो लोग देते हैं, और जो बैक्टीरिया देते हैं उनको बोला जाता है एजाइडोबैक्टीरियम एंड क्लोस्ट्रिडियम। एंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दी हम लोग का बैक्टीरिया, दिस प्रोसेस नोन एज द सिम्बायोटिक बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। दैट मीन्स कि यहाँ पे प्लांट भी ग्रो करेगा, नाइट्रोजन भी फिक्सेशन होगा, उसके साथ साथ बैक्टीरिया भी ग्रो करेंगे। तो इसलिए उसको सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बोलते हैं और फिक्सिंग बैक्टीरिया बोलते हैं। तो सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया आज राइजोबियम क्या करता है कि रूट एंड नोडुल्स ऑफ द लेग्यूम में प्रेजेंट रहते हैं। दैट मीन्स कि रूट से वो लोग ऑब्जर्व करेंगे फूड, और इन रिटर्न उनको क्या देंगे, नाइट्रोजन टू द प्लांट। जिसके रूट पे वो लोग रहेंगे वो रूट से ऑब्जर्वेशन करेंगे न्यूट्रिशन, और उनको गिफ्ट में देते हैं नाइट्रोजन टू द प्लांट, बाय व्हिच दोनों हंसी खुशी मिलकर रहते हैं। लाइक लाइकेन, हम लोग पढ़े थे लाइकेन, लाइकेन के थ्रू वो प्रेजेंट रहते हैं। फिर होता है कि हम लोग का जो टोटल बेस नाइट्रोजन प्रोड्यूस होता है, तो 30% हम लोग का नॉर्मली प्रोड्यूस होता है, इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस हो रहा है, तो जिसको हम लोग यूज करते हैं फॉर द हॉस्पिटलाइज में यूज करते हैं, या हम लोग गैस सिलेंडर में भर के लाते हैं। बट बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होता है वो बैक्टीरिया ग्रो करेगा, और उनका जो स्ट्रक्चर है देखो, नाइट्रोजन है, उसके साथ 8 हाइड्रोजन यूज होता है, 8 इलेक्ट्रॉन भी फॉर्मेशन करेगा विथ 16 एटीपी। अब बोलो कि 16 एटीपी कहाँ से आया? ये जो एटीपी है, प्लांट जो कलेक्शन किया था, खाना कलेक्शन किया था इन द फॉर्म ऑफ लाइट, फोटोसिंथेसिस किया था, एट दैट मोमेंट दिस एटीपी और द एनर्जी प्रोडक्शन किया था। उस एनर्जी को प्रोडक्शन करने के बाद दो एमोनिया, एक हाइड्रोजन, उसके साथ 16 एडीपी, दैट मीन्स कि फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो गए हैं अनोमली, हमारे जितने एमोनिया यूज करने में फॉस्फेट ग्रुप यूज हो गए हैं। नाइट्रिफिकेशन क्या है कि एमोनिया टू नाइट्रेट फॉर्मेशन जब करेंगे उस द सॉइल लिविंग बैक्टीरिया, उसको बोला जाता है नाइट्रिफिकेशन। तो नॉर्मली यहाँ पे नाइट्रोसोमोनास जो बैक्टीरिया है वो फॉर्म करते हैं कि एमोनिया टू नाइट्रेट फॉर्मेशन करेंगे, दैट मीन कि NH3 टू NO2 फॉर्मेशन वो चेंजेस करेंगे। दैट मीन्स कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन आ जाएगा, दैट की ऑक्सीजन ऐड हो जाएंगे। NH3 में ऑक्सीजन नहीं है, NO2 में ऑक्सीजन है, तो दैट मीन्स कि ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रेट इनटू नाइट्रेट्स हो जाते हैं। It is important for the ammonia to be converted to nitrates or nitrates because ammonia gas is toxic to plants. Ammonia gas toxic to plants होते हैं, इसके plants डायरेक्ट absorb नहीं कर पाते हैं, इसके लिए वो ऑक्सीडेशन करके नाइट्रेट टू नाइट्रेट होता है। पहले एमोनिया करेगा नाइट्रेट, फिर होगा नाइट्रेट होगा। तो दैट मीन्स कि ये सारी चीज नाइट्रोसोमोनस क्या करेगा कि एमोनिया से नाइट्रेट फॉर्मेशन करेगा नाइट्रोसोमोनस, नाइट्रेट से जब नाइट्रेट करेगा वहां पे हो जाएगी नाइट्रोबैक्टर। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था भाई में, कौन सा बैक्टीरिया नाइट्रोसोम जो होता है कि नाइट्रेट से नाइट्रेट फॉर्मेशन करता है, तो कोई बोल देते हैं नाइट्रोसोमोनस, बट यहाँ पे गलत हो जाएगा, तो यहाँ पे होगा नाइट्रोबैक्टर होगा, जब नाइट्रेट से नाइट्रेट करते हैं। और ammonia or not only plants, animals cannot also absorb because it is the too highly poisonous for the plants and animals। तो यहाँ पे देखो स्ट्रक्चर वाइज दिया है कि एमोनिया जब हुआ तो फॉर्मेशन हुआ, ऑक्सीजन ऐड हुआ, तो नाइट्रेट जब फॉर्मेशन होगा NO2 हो गया है, फिर वहां पे और एक ऑक्सीजन आ गया वाटर के थ्रू। वाटर कहाँ से आएगा? मॉइस्चर में जितने वाटर है, आने के बाद वो नाइट्रेट फॉर्मेशन कर जाएगा बिकॉज O2 है और अनदर ऑक्सीजन ऐड हुआ और फॉर्मेशन हुआ नाइट्रेट। दैट मीन्स व्हिच इज इजीली अवेलेबल और ऑब्जर्व बाय द प्लांट्स। फिर होता है एसिमिलेशन। तो जब नाइट्रोजन फ्रॉम सॉइल बाय द एब्जॉर्प्शन थ्रू द रूट्स एज अमीनो एसिड, नाइट्रेट आयंस और अमोनियम आयंस, जब डायरेक्ट नाइट्रेट जो फॉर्मेशन हो गया और उसको जब हम लोग ऑब्जर्व करता है प्लांट इन द फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड्स, नाइट्रेट आयंस और अमोनियम आयंस, उसको बोला जाता है हम लोग एसिमिलेशन। दैट मीन की मिक्सिंग हुआ, मिक्सअप हुआ, एसिमिलेट हुआ। एंड प्लांट यहाँ पे देखो स्ट्रक्चर देखो, अमोनियम दिया है, नाइट्रेट दिया है, इसको वाटर के थ्रू वो प्लांट इजीली रूट में ऑब्जर्व करते हैं। एट दैट टाइम हम लोग बोलते हैं कि इसको एसिमिलेशन हुआ बोल के। प्लांट्स कैन ऑब्जर्व नाइट्रेट और अमोनियम फ्रॉम द सॉइल थ्रू द रूट हेयर। इफ नाइट्रेट इज ऑब्जर्व देन द फर्स्ट रिड्यूस टू नाइट्रेट आयंस। अगर नाइट्रेट लिया है तो नाइट्रेट फॉर्म में रिड्यूस करेगा, फिर वो अमोनिया में फॉर्मेशन करेगा, देन ब्रेक डाउन करेगा हमारे बॉडी में, अमीनो एसिड फॉर्मेशन करेगा न्यूक्लिक एसिड एंड क्लोरोफिल में जाके। Plants have a symbiotic relationship with rhizobia. Some nitrogen is assimilated in the form of ammonium and directly from the nodules. नोडुल्स के थ्रू में भी डायरेक्ट हम लोग का राइजोबियम क्या है कि
असिमुलेट कर जाते हैं, वो ऑब्जर्व कर लेते हैं, रूट ऑब्जर्व कर लेता है एमोनिया को फॉर्मेशन को होने के बाद ऑब्जर्व करता है थ्रू द नूडल से डायरेक्ट फॉर्मेशन करते हैं। एट दैट टाइम क्या बोलते हैं कि बैक्टीरिया और रूट्स दोनों वो कहते हैं सिम्बायोटिकली, दोनों नेबरहुड होके वो वहां पे रहते हैं। फिर होता है अमोनिफिकेशन। When a plant or animal dies or an animal expels waste, the initial forms of nitrogen is organic. हम लोग का बॉडी से जो रेसिड्यू निकलता है, डेड बॉडी हुआ या हम लोग का रेसिड्यू जो वेस्टेज डेली वेस्टेज हुआ, वो सारे जो है नाइट्रोजन फॉर्म में निकलते हैं। एंड दैट इज द ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक क्यों है? बिकॉज द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज गिविंग द रेसिड्यू। द गिविंग एक लिविंग बॉडी से हम लोग का रेसिड्यू निकल रहा है, दैट्स व्हाई इट इज ए ऑर्गेनिक मेथड। Bacteria or fungi convert the organic nitrogen with the remains back into the ammonium called the ammonification or mineralization। जैसे ही हमारे बॉडी से जो वेस्टेज निकला उसको डिकम्पोज कौन करेगा? डिकम्पोजर। बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, फंगस भी हो सकते हैं। जब वो ब्रेक कर उसको एक फॉर्म में चेंजेस करते हैं, नाइट्रेट फॉर्म हम लोग का जो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन फॉर्म से लेके उसको जब मिनरल फॉर्म में चेंज करते हैं, दैट इज कॉल्ड मिनरलाइजेशन और अमोनिफिकेशन। दैट मीन्स कि अमोनियम फॉर्म में हम लोग के नाइट्रोजन को जब चेंज होता है, दैट इज कॉल्ड अमोनिफिकेशन। एग्जांपल जो है देखो यहाँ पे दिया कि सिंथेटेजेज, ऑक्सोग्लूटेज, डिहाइड्रोजिनेज, दैट मीन्स दीज आर द एंजाइम्स व्हिच हेल्प इन द अमोनिफिकेशन वर्क में एज वेल एज द नाइट्रोजन फिक्सेशन में ये लोग काम करते हैं। फिर हुआ डीनाइट्रिफिकेशन। नाइट्रेट फॉर्मेशन हो गया, अब ब्रेकडाउन होगा। तो दैट मीन्स कि डीनाइट्रिफिकेशन इज द रिडक्शन ऑफ नाइट्रेट्स back into the largely inert nitrogen gases, completing the nitrogen cycle। That means कि जो नाइट्रोजन हम लोग लिए थे फिर नाइट्रोजन फॉर्म में जो बैक करेगा उसको बोला जाता है डीनाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन हम लोग का होता है ना क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, लाइक द नाइट्रिफिकेशन एंड डीनाइट्रिफिकेशन। तो प्रोसेस जो होता है वहां पे था नाइट्रोसोमोनास, पहले था नाइट्रोसोबैक्टर था, यहाँ पे चेंजेस हो गया। यहाँ पे बैक्टीरिया क्या करेंगे? क्लोस्ट्रीडियम हो जाएंगे, फिर सीडोमोनास आ जाएंगे। सीडोमोनास एंड क्लोस्ट्रीडियम ये लोग क्या करेंगे? जो नाइट्रोजन साइकिल को, नॉर्मल नाइट्रोजन को बैक कराएंगे, ब्रेक डाउन करेंगे, नाइट्रेट फॉर्म को ब्रेक डाउन करके नाइट्रोजन करेंगे, एमोनियम को ब्रेक डाउन करके नाइट्रोजन बनाएंगे। तो ये है सीडोमोनास और क्लोस्ट्रीडियम। इनको अगर आप लोग विदाउट ऑक्सीजन भी रखोगे तो ये बैक्टीरिया ग्रो करेंगे, रेस्पिरेशन करेंगे, ऑटोमेटिकली वो जो परफॉर्म कर रहे हैं डीनाइट्रिफिकेशन ये कंटिन्यूअसली करते जाएंगे इन द एब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन, क्योंकि यहाँ पे ब्रेक डाउन हो रहा है, यहाँ पे फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, जिसके लिए ऑक्सीजन इज नॉट इम्पोर्टेंट। Then they use the nitrate as an electron acceptor in the place of oxygen during respiration। That means कि नाइट्रेट जो है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के थ्रू ऑक्सीजन को यूज करते हैं इन प्लेस ऑफ ऑक्सीजन, वहां पे नाइट्रोजन। जब रेस्पिरेशन होता है हम लोग ऑक्सीजन एंट्री लेते हैं, इनहेल करते हैं, बट यहाँ पे नाइट्रोजन को इनहेल करते हैं। जो बैक्टीरिया जो है नाइट्रोजन को इनहेल करते हैं इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन, दैट्स व्हाई वो वहां पे एनएरोबिक कंडीशन में भी वो लोग जिंदा रह सकते हैं। एंड डीनाइट्रिफिकेशन हैपेंस इन एनएरोबिक कंडीशन लाइक वाटरलॉग्ड सॉइल। जहाँ पे पानी जमा होता है वहां पे जो मिट्टी रहता है वहां पे भी नाइट्रोजन फॉर्मेशन जो होता है हुआ था वो ब्रेकडाउन हो जाता है थ्रू दी डीनाइट्रोजन प्रोसेस। तो यहाँ पे देखो डीनाइट्रोजन रिएक्शन कैसे दिया है कि नाइट्रेट से नाइट्रेट, नाइट्रेट से नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड से नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड से नाइट्रोजन गैस आ रहे हैं। तो दैट मीन्स कि जो नाइट्रोजन गैस हम लोग वहां पे लिए थे अमोनिफिकेशन तक, वहां पे एसिमिलेशन के थ्रू यहाँ पे ब्रेकडाउन हो रहे हैं नाइट्रेट से नाइट्रोजन गैस तक इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट, नाइट्रिक ऑक्साइड एंड नाइट्रस ऑक्साइड से। तो यहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं, एक फॉर्म में अगर फॉर्म करेंगे नाइट्रोजन से, एक डिफरेंट फॉर्म करेंगे तो उनको बोला जाएगा अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन एंड एसिमिलेशन। जब ब्रेकडाउन करेंगे उसको बोला जाएगा डीनाइट्रिफिकेशन। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर देखो हम लोग का नॉर्मली दिया गया है कि यहाँ पे जो बॉडी है, प्लांट ऑब्जर्व कर रहा है, प्लांट को खा रहा है, वहाँ पे खरगोश खा रहा है, खरगोश से क्या कि बॉडी से अमीनो एसिड निकल रहा है जो कि डेट्रीटस या तुम लोग का रेसिड्यू है। रेसिड्यू को डेट्रीवर्स और द डिकम्पोजर ब्रेक डाउन करके अमोनियम फॉर्म में चेंज करें। वही अमोनियम को प्लांट अगेन एसिमिलेशन से लेता है, डायरेक्टली एसिमिलेशन थ्रू से ले सकता है, नहीं तो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या करेगा? नाइट्रेट फॉर्म चेंज करेगा, नाइट्रेट से डीनाइट्रीफाइंग करके फिर वो चेंज करेगा हम लोग का नॉर्मली एसिमिलेशन करने के लिए डायरेक्ट दे सकता है, नाइट्रेट डीनाइट्रिफिकेशन करके नाइट्रोजन इन द एटमोस्फेयर को बैक करता है। सेम टाइम में जब होता है वो जो नाइट्रोजन होता है एटमोस्फेयर से वो डायरेक्टली हम लोग नाइट्रोजन फिक्सेशन होते हैं थ्रू द रूट्स ऑफ द बैक्टीरिया। तो ये था हम लोग का नाइट्रोजन साइकिल। अब आते हैं इकोलॉजिकली फंक्शन जो होता है, इकोलॉजिकली नाइट्रोजन कितना इंपॉर्टेंट है।
Nitrogen is necessary for all known forms of life on the earth. It is component of all amino acid as is compared to prepare और मेकअप ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। हमारा बॉडी में जो आरएनए डीएनए प्रेजेंट है, हम लोग का जो न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट है, डीएनए बाई हम लोग जो हम लोग के पेरेंट्स से मिला है, ये भी जो है टोटली अमीनो एसिड से बना है। और अमीनो एसिड क्या है? एक नाइट्रोजन बेस होता है। जैसे एटीपी फॉर्मेशन होगा तो वहां पे भी हम लोग का चाहिए, हम लोग अमीनो एसिड चाहिए। लाइक द डीएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड है, और आरएनए रिबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड नाइट्रोजन बेस विथ शुगर रहते हैं। तो नाइट्रोजन बेस जब तक नहीं होगा शुगर फॉर्मेशन कुछ काम नहीं करेगा, जिसके थ्रू वो एसिड फॉर्मेशन नहीं करेंगे। The chemical processing of natural fixation are necessary to the convert gaseous nitrogen into compound। जो गैस हम लोग का 78% हम लोग का एटमोस्फेयर में है, हम लोग डायरेक्ट यूज नहीं कर पाएंगे। अगर डायरेक्ट यूज करेंगे तो हम लोग मर जाएंगे। तो जिसके लिए हम लोग को डिफरेंट लोअर फॉर्म में हम लोग चेंज करना है, जिसके लिए वो कंपाउंड में चेंजेस होता है। नाइट्रेट से नाइट्रेट, नाइट्रेट से अमोनिया, अमोनिया से हम लोग फिर ऑब्जर्व करते हैं। फिर हम लोग का अमोनियम से अमोनियम ब्रेक डाउन करेगा, ब्रेक डाउन करके फिर नाइट्रेट बनेगा, नाइट्रेट से नाइट्रेट, फिर हम लोग को नाइट्रोजन एटमोस्फेयर को निकल जाता है। तो ये था हम लोग का नाइट्रोजन साइकिल। तो नाइट्रोजन कहाँ पे यूज होता है? नॉर्मली हम लोग देखते हैं फर्टिलाइजर में हम लोग नाइट्रोजन देखते हैं। तो नॉर्मली राइस प्लांट में हम लोग को सबसे ज्यादा नाइट्रोजन चाहिए, क्योंकि प्लांट ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन इज द इम्पोर्टेंट फैक्टर। और यहाँ पे क्या दे कि फर्टिलाइजर, नाइट्रिक एसिड, नाइलॉन, डाइज एंड एक्सप्लोजिव बनाने के लिए हम लोग को नाइट्रिक एसिड चाहिए। उसके साथ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन ऑल फार्माकोलॉजिकल ड्रग्स। हम लोग का जितना भी मेडिसिन प्रिपेयर होता है उनको नाइट्रोजन में ही स्टोर किया जाता है। -180 डिग्री टेम्परेचर में रखा जाता है। जब एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को हम लोग लिक्विड फॉर्म में लेके आएंगे, इट विल बी लोअर देन द 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसलिए यहाँ पे हॉस्पिटल में हम लोग नॉर्मली कोई भी बॉडी को हम लोग स्टोर करने के लिए या ट्रांसफर करते हैं, जब एक हम लोग बॉडी को ऑर्गन को ट्रांसफर करते हैं तो हम लोग नॉर्मली लिक्विड नाइट्रोजन में उसको रखते हैं, जिसके थ्रू वो हम लोग का नॉर्मली ट्रांसफर होते हैं। इधर और एक क्या करते हैं हॉस्पिटल में, बॉडी को डिकम्पोज करना है, ब्रेक डाउन करना है, तो उसको हम लोग लिक्विड नाइट्रोजन में डीप करके रख देते हैं। ऑटोमेटिकली हम लोग 24 आवर के बाद उस सेल को देखेंगे तो ब्रेक डाउन हो जाते हैं। CPUs or computers and use the nitrogen gas to keep them from heating up. X-ray detectors also rely on this element. फ्रीज है, एसी है, वहां पे जो कंप्रेसर है वहां पे भी हम लोग नाइट्रोजन भर भर के है इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड फॉर्म। दैट्स व्हाई इट गिव्स द टेम्परेचर कूल इन द इनसाइड नॉट द आउटसाइड। फिर क्रायो प्रिजर्वेशन also gives the nitrogen gas to conserve blood and other biological solution। अभी जैसे बताया कि लिक्विड नाइट्रोजन में हम लोग कोई भी लिविंग पार्ट को रखते हैं ट्रांसफर करने के लिए या बॉडी को कुछ दिन रखने के लिए, तो उसको बोला जाता है क्रायो प्रिजर्वेशन। The element is used in the controlling pollution. Many industries use it to destroy toxic liquids and vapors in industrial tools। हम लोग जब स्प्रे भी करते हैं, हम लोग का जो डीओ स्प्रे करते हैं या मॉस्किटो स्प्रे करते हैं, यहाँ पे भी हम लोग क्या होता है कि नॉर्मली वहां पे भी नाइट्रोजन रहता है, जो हम लोग को एक कूलिंग इफेक्ट देता है। कि नाइट्रोजन हम लोग कूलिंग इफेक्ट देने के कारण अल्कोहल के साथ मिक्स से ये एक परफ्यूम फॉर्मेशन करता है। देन आते हैं हम लोग फॉस्फोरस साइकिल। इट इज ए अंशो, ये स्लोएस्ट बायोकेमिकल, ये सबसे धीरे धीरे आएगा। ये पत्थर के फॉर्म में रहता है, तो इसलिए हम लोग को बॉडी में धीरे धीरे हम लोग को मिलता है थ्रू प्लांट्स। यहाँ पे क्या होता है कि मूवमेंट ऑफ फॉस्फोरस थ्रू द लिथोस्फीयर, दैट मीन्स पत्थर से आएगा। फिर हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर वाटर के थ्रू आएगा। फिर हम लोग का बायोस्फीयर के थ्रू आते हैं। तो नॉर्मली ये तीन फॉर्म में लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड बायोस्फीयर के थ्रू हम लोग के बॉडी में आता है। Unlike many other biochemical cycle, atmosphere does not play significant role in movement of phosphorus। हम लोग का phosphorus जो है इतना significant नहीं शो करता है एटमोस्फेयर में, बिकॉज द phosphorus बेस्ड कंपाउंड यूजुअली सॉलिड फॉर्म में मिलता है, पत्थर के फॉर्म में मिलता है, और जो कि अर्थ क्रस्ट में रहते हैं, अर्थ के नीचे रहता है, एटमोस्फेयर में नहीं रहता है, जिसके लिए phosphorus जब निकलता है तो हम लोग को पता नहीं चलता है। The lower concentration of phosphorus in soil reduces plant growth and slows soil microbial growth। नॉर्मली जब फॉस्फोरस कम हो जाता है तो ग्रोथ स्लो करता है, धीरे धीरे ग्रो करता है। एनपीके जो होता है नाइट्रोजन फॉस्फोरस देते हैं तो नॉर्मली प्लांट ग्रो करेगा, और जो ग्रो तो करेगा, नाइट्रोजन देने से प्लांट ग्रो करेगा, बट कितने स्लो से हो रहा है, कितने ज्यादा हो रहा है। जब तक फॉस्फोरस नहीं दोगे वो स्पीड अप नहीं होगा, तो इसलिए फॉस्फोरस भी दिया जाता है कि उसको स्पीड अप करने के लिए। तो वहां पे अगर उसका नंबर अमाउंट डिक्रीज हो जाता है सॉइल में, तो ऑटोमेटिकली उनका जो प्लांट में सॉइल है उसका ग्रोथ कम हो जाता है।
तो जब प्रोसेस ऑफ फास्फोरस साइकिल देखते हैं तो फॉस्फेट जो होता है प्लांट जो पत्थर होते हैं वहां से निकलते हैं, मिनरल से फॉर्मेशन होते हैं। नॉर्मली अपाटाइट जो होता है हम लोग का मिनरल्स अपाटाइट, वहां पे फास्फोरस भर भर के होते हैं। लाइमस्टोन होते हैं, फिर क्वार्जाइट होते हैं, फिर आयरन और बॉक्साइट होते हैं, वहां पे नहीं है। वो जो अपाटाइट है कि एक टाइप का हम लोग का मिनरल मिनरल से उसमें फास्फोरस भर भर के होते हैं। फास्फोरस जो होता है प्योर फॉर्म में या फॉस्फेट फॉर्म में रहता है। हमारे बॉडी में फॉस्फेट कैसे रहता है? एटीपी फॉर्म में रहता है। Small losses occurs in terrestrial environment by leaching erosion through the action of rain. तो दैट मीन्स कि जब इरोजन होते हैं तो एट दैट मोमेंट ऑल्सो हम लोग का फॉस्फेट जो होता है कि हम लोग का डिस्ट्रॉय हो जाता है और उनका अमाउंट कम हो जाता है और मिट्टी से हम लोग का वॉश हो जाता है, वो धो के निकल जाता है, जो इसके कारण हम लोग का प्लांट ग्रो कम हो जाता है। फिर पत्थर का जो वेदरिंग होता है, ब्रेकडाउन ऑफ दी रॉक्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, वो भी फास्फोरस को रिलीज करते हैं। जब पत्थर ब्रेक करेगा एट दैट मोमेंट कुछ फॉस्फेट वो एनवायरमेंट को या सॉइल को अब देगा। सेम टाइम में मिनरल्स को जब हम लोग नेचुरली ब्रेकडाउन करेगा एट दैट ऑल्सो दे ऑल्सो गिव वन फॉस्फेट ग्रुप। Then plants may be consumed by the herbivores. Phosphorus is either incorporated into the tissues or excreted. हम लोग का बॉडी में फॉस्फोरस एब्जॉर्ब हो सकता है। जब प्लांट को हम लोग खा रहे हैं हम लोग के बॉडी में फॉस्फेट एब्जॉर्ब हो सकते हैं। अगर एब्जॉर्ब नहीं हुआ तो वो यूरिनेशन होके एक्सक्रीटेड हो जाते हैं। Death of animal or plant decays, then phosphorus is returned to the soil, whereas a large part of the phosphorus is transferred into insoluble compound. अगर हमारे बॉडी में डेथ हो जाता है और जब हम लोग को मिट्टी में मिक्स हो जाते हैं और कार्बन मिट्टी में मिक्स हो जाते हैं और आज जब मिक्स हो जाता है ऑटोमेटिकली जितने फॉस्फोरस उस रेसिड्यू में होगा वो अगेन मिट्टी में शिफ्टेड हो जाते हैं। दैट्स इट इज ऑल्सो जहां से गए थे दैट मीन्स लिथोस्फीयर, वहां पे पत्थर होगा, सॉइल होगा, वहां से गए थे, वहां पे हम लोग डेथ होने के बाद अगेन डिकम्पोजर के साथ हम लोग ब्रेक डाउन करके नीचे आ रहे हैं, सॉइल में आ रहे हैं। सो दैट्स व्हाई इट अगेन साइकिल इज कंप्लीटेड। तो यहाँ पे देखो स्टेप दिखा है कि फॉस्फेट इज रिलीज्ड बाय द इरोजन ऑफ रॉक्स, रॉक्स ब्रेक डाउन करेगा, इरोजन होगा तो फॉस्फेट मूव करेगा। देन प्लांट्स एंड फंजाई टेक अप द फॉस्फेट विद द रूट्स, रूट के थ्रू प्लांट एब्जॉर्ब करेगा। Then phosphorus moves from the producer to consumer through food chain. प्लांट जो फूड बनाएगा जब उसको हम लोग खाएंगे तो ऑटोमेटिकली फूड चेन को हम लोग फॉस्फोरस लेते जाएंगे। देन फॉस्फोरस जो में सिप इनटू द ग्राउंड वाटर फ्रॉम सॉइल ओवर टाइम फॉर्मिंग इनटू द रॉक। अगर फॉस्फोरस जो सॉइल में है वो जमा होते 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 पत्थर फॉर्म कर जाता है, मिट्टी में जमा होते होते वो पत्थर में फॉर्म हो जाता है। जब वो वही पत्थर अगेन हम लोग का ब्रेकडाउन करेगा और इरोजन होगा तो साइकिल अगेन स्टार्ट होगा। जहां से गया था वहां पे पत्थर तक आ गया सॉइल में, आफ्टर द डेथ हुआ एंड डिकम्पोज हुआ, देन अगेन हम लोग का मिट्टी में मिक्स हुआ। एट दैट मोमेंट द जो था फॉस्फेट वो जमा होते जाता है, ग्राउंड में जमा होते जाते हैं, एक लेयर में जमा हो जाते हैं। एट दैट मोमेंट अगेन वो कुछ 10 साल के बाद अगेन वो इरोजन स्टार्ट होगा एंड अगेन द साइकिल विल बी स्टार्ट। तो यहाँ पे देख सकते हो वेदरिंग द रॉक हो रहा है, फॉस्फेट इन द रॉक हो रहा है, इस फॉस्फेट इन द सॉइल है, सॉइल को लेके फॉस्फेट सॉल्यूशन बनता है पानी के साथ, फिर पानी के से बनता है फॉस्फेट जो सॉलिड्स बन जाते हैं, उसको रॉक फॉर्म में भी पानी में भी रॉक फॉर्म होता है। इधर हम लोग का रूट के नीचे भी हम लोग का यहाँ पे फॉस्फेट प्रेजेंट होता है। प्लांट मरने के बाद भी डेट्रीटेड फॉर्म में हम लोग का देता है फॉस्फेट। एनिमल ऑल्सो सेम डेट्रीटेड फॉर्म से करने के बाद देते हैं। ठीक है, तो ये था फॉस्फोरस साइकिल। इनका इकोलॉजिकल फंक्शन क्या है? क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट है फॉर प्लांट एंड एनिमल्स। बिकॉज अगर प्लांट अगर इसको नहीं लेगा तो इसका ग्रोथ स्लो हो जाएगा, ग्रोथ स्लो हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली फूड जो बनेगा फूड प्रिपरेशन में भी इसका स्लो ग्रोथ हो जाएगा। जब फूड में अमाउंट कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली एनिमल को भी फॉस्फेट कम मिलेगा। फॉस्फेट जो है कि एटमोस्फेयर में इंटर नहीं करता है। फॉस्फेट जनरली सॉइल पे रॉक में, रॉक से प्लांट को, प्लांट से एनिमल, एनिमल से अगेन डायरेक्ट सॉइल या रॉक में आ जाते हैं। तो 80% ऑफ द माइंड फॉस्फोरस इज यूज टू मेक फर्टिलाइजर। हम लोग को जितना भी फॉस्फोरस हम लोग को खादान से मिलता है, माइनिंग के थ्रू हम लोग को फॉस्फोरस मिलता है, उसमें से 80% हम लोग क्या करते हैं ना फर्टिलाइजर्स के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो फर्टिलाइजर्स के करने के बाद कुछ क्या करता है कि पॉल्यूशन करते हैं। ये पॉल्यूशन अगर कंट्रोल फॉर्म में हम लोग फर्टिलाइजर यूज नहीं करेंगे तो ये एक पॉल्यूशन करते हैं, वाटर पॉल्यूशन करते हैं, एज वेल एज द हम लोग का सॉइल पॉल्यूशन भी कभी कभी कर लेता है। तो फॉस्फोरस नॉर्मली
नेचर में क्या है कि आयन फॉर्म में होते हैं, PO4 3 माइनस में, दैट मीन्स कि 3 आयन उनका रहता है, वो हमेशा किसी ना किसी के साथ अटैच होके आयन को चार करते हैं। तो इसलिए द मोस्ट अबंडेंट फॉर्म इज द ऑर्थोफॉस्फेट। अभी देखो हमारे बॉडी में भी फॉस्फेट है, तो ट्राइफॉस्फेट है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, दैट मीन्स हमारे बॉडी में भी 3 फॉस्फेट है, एक एनर्जी फॉर्मेशन करता है एटीपी। और जबकि वो ऑर्थोफॉस्फेट जो है वो नॉर्मली हम लोग बॉडी को प्लांट के थ्रू हम लोग लेते हैं। तो अब आता है कि इंपोर्टेंस, फॉस्फोरस का इंपोर्टेंट क्या है कि ये बायोलॉजिकल फंक्शन करता है, आरएनए डीएनए फॉर्मेशन करता है, जैसे कि एटीपी बताया मैंने। फिर होता है कि जब डबल हेलिक्स बनता है तो फॉस्फेट ईस्टर नहीं बनेगा। ईस्टर दैट मीन्स कि फॉस्फेट जब तक अटैच नहीं होगा आरएनए डीएनए फॉर्मेशन नहीं होंगे। जब फॉस्फेट अटैच हो जाता है तब आरएनए डीएनए को एक एसिड बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लिक एसिड। The double helix of two strands of DNA is only possible because of phosphate ester. फिर biomolecule is also found in bone and enamel of the mammalian teeth. हम लोग मिट्टी में देते हैं ना कि हड्डी का जो पाउडर देते हैं, या वो जो हड्डी लाके हम लोग उसके साथ कोकोपीट और वर्मी कंपोस्टिंग देते हैं, बिकॉज ओनली टू द गिविंग द फॉस्फोरस टू द प्लांट फॉर द स्लो ग्रोथ करने के लिए। और जो ये जो होता है हम लोग क्या लेते, कहाँ से लेते हैं, जो डेड बॉडी एनिमल का बोन होता है, टीथ होता है, या उसका जो नेल्स होते हैं, वहां से हम लोग फास्फोरस कलेक्ट करते हैं। तो ये जो होता है कि ये कैल्शियम फॉस्फेट देता है, हम लोग का जो टीथ होता है ये कैल्शियम फॉस्फेट देता है, तो इसलिए हम लोग का बॉडी लाइम जैसे दिखता है, हम लोग का बॉडी लाइमस्टोन जैसे बनता है। और जो होता है वो इन द फॉर्म ऑफ जो कैल्शियम फॉस्फेट देता है, टीथ से जो बनता है उसको बोला जाता है हाइड्रोक्साइल एपेटाइट। हम लोग बोले थे एपेटाइट फॉर्म में मिलता है, तो वो होता है हाइड्रोक्साइल एपेटाइट। यहाँ राइट साइड में देखो बोन भर भर के दिखा रहे हैं, तो ये बोन जो है फुल ऑफ हम लोग का है कैल्शियम फॉस्फेट बोन का है, टीथ में ज्यादा रहता है, बाकी पार्ट में कम रहते हैं। इट इज ऑल्सो फाउंड इन द एक्सोस्केलेटन इन इंसेक्ट्स एंड फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड दैट मीन्स कि लिपिड के साथ जब फॉस्फोरस रहेंगे तब उसको फॉस्फोलिपिड्स बोला जाता है। फॉस्फोरस कैचेस फायर रेडिली। हम लोग जो मैच बॉक्स देख रहे हैं, मैच बॉक्स में जो काला कलर का होता है या रेड कलर का ग्रीन कलर का स्टिक में लगा हुआ था, आजूलस हम लोग का साइड में जो लगा है हम लोग का, जिसके ऊपर रब करके या फ्रिक्शन करके हम लोग फायर बर्न करते हैं, वो भी एक फॉस्फोरस होता है। हम लोग का जितने भी फायर क्रैकर्स देख रहे हैं, जो दिवाली में हम लोग फटाके फोड़ते हैं, वो सल्फर के साथ फायर हम लोग का होते हैं, नॉर्मली फॉस्फोरस होते हैं। और क्या करते हैं कि फॉस्फोरस और जिंक हम लोग का जो रैट होता है उनको मारने के लिए हम लोग यूज करते हैं। जिंक और फॉस्फोरस देके हम लोग को वो चूहे को मारने के लिए हम लोग यूज करते हैं। फिर बॉम्ब बनाने में जैसे बताया कि फायर क्रैकर्स बनाने के लिए बुलेट्स, फिर हम लोग का स्मोक स्क्रीन, हम लोग जो होते हैं धुआं बनाने के लिए जो स्मोक वाला होता है उसको बनाने के लिए भी हम लोग फॉस्फोरस यूज करते हैं। फिर होता है कि मेनी सॉल्युबल फॉस्फेट्स आर यूज्ड टू रिमूव अनवांटेड मेटल सॉल्ट्स फ्रॉम द वाटर। हम लोग का कुछ कुछ फॉस्फेट को हम लोग यूज करते हैं कि वाटर में अगर कोई पोल्यूटेड है, मेटल पोल्यूशन हुआ है या मेटल सॉल्ट है, उसको फिल्टरिंग करने के लिए भी हम लोग फॉस्फोरस यूज करते हैं। तो दैट मीन्स यहाँ पे हम लोग देखें कि बायोजियोकेमिकल्स आर important because they regulate the elements necessary for life on earth by cycling through the biological and physical aspect. That means कि biological, that means कि everywhere the biological will present because the plants will be absent, from the plant the consumer will be taken. So that's why the biological aspect main रहेगा, उसके साथ साथ physical aspect प्रोडक्शन होगा फिजिकल से, ऑब्जर्व होगा प्लांट से, फिर ब्रेकडाउन होगा तुम लोग का एनिमल में, फिर ऑब्जर्व होगा तुम लोग का फिजिकल फॉर्म में। Biological chemicals are from natural cycle that allows continuous survival of ecosystem. अगर बायोलॉजिकल साइकिल और मिनरल फॉर्मेशन नहीं होगा तो ना प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करेगा, ना प्रोडक्शन से हम लोग को कंज्यूमर को खाना मिलेगा, ना कंज्यूमर से डिकम्पोजर को मिलेगा। अगेन डिकम्पोजर ना फॉर्म करेंगे मिनरल फॉर्मेशन करेंगे, तो दैट्स व्हाई द इट इज आल्सो कॉल्ड एज द मिनरलाइजेशन। ओके, तो ये था आज का हम लोग का क्लास था। एनी डाउट आप लोग पूछ सकते हो। नाउ दिस क्लास इज ओपन फॉर द डिस्कशन। Any doubt? Anybody, if any doubt, you can ask. Okay. Hello. Yes, sir. If any doubt, you can ask. Okay. Okay, sir. Okay. Okay. So can we close the class?
or any doubt you can ask. Okay, the discussion, any class discussion, then we will close. Okay. Okay, Sir, okay, could you sir. send this in, sir, could you send this in WhatsApp Huh. group? I'll send. Don't worry. Today I'll send because last night I was a little bit some busy in some university work, so I didn't send it. Today I'll send. Okay, don't worry. Okay, Okay, sir. Sir, also I'll send it to yesterday's you. work. I send. No, I send. No, yesterday due to some university work I could not send it proper time. Today I'll Okay. send all of this. Okay. Okay, So sir. if Okay, sir. any doubt, if after reading any doubt you occurs, you can ask. Okay. Yes, Because sir. questions in like this. I'm at the time of teaching. I'm asking the question. Okay. Okay, sir. Okay. Sir, Okay. what type of question are there I'm from this saying that is chapter? the long question. Biochemical cycle, direct it will be what is biochemical cycle? Yes, sir. Any sound is coming. Please close that sound first. Okay. Question will be biochemical cycle. What is biochemical cycle? Okay. And describe the Yes. nitrogen cycle. Okay. Describe the nitrogen. It will be long question. Okay. What is biological cycle and describe nitrogen cycle. At that time, you have to write what is biochemical cycle definition, type of the biochemical cycle, that means the sedimentary and the gaseous types. Then come to the nitrogen. First, you draw the diagram. Yes, sir. Then prepare the first the diagram. Then write up you do because if you write the diagram, you will make fast na. One external will be see because diagram is correct. So automatically you can write all the things. Okay, at that moment Sir, the how external many will be see. how many Ask. words there in a long question? So it depends on the marks. Okay, if it is 10 marks, 10 marks automatically it Yes. will be it will be 700. It will be 700 minimum. Okay, if it is 10 That marks, if that it is means say if 3 to 4 pages, no? ये 3 to 4 pages. If it is a diagram is much more ना तो राइटिंग इज भी लेस. Yes. इसलिए बता रहा हूँ कि डायग्राम में अगर आप सारी चीज बता दे रहे हो ना तो Yes, राइटिंग में sir. कम होने से कोई कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा. Sir, in this ठीक है. chapter, there are also other gases cycle. हाँ, दे Are विल बी they वेरी लेस. important? नॉट दैट इज नॉट मच इम्पोर्टेंट. कार्बन साइकिल, कार्बन हम लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं, हाँ, फोटोसिंथेसिस sir. कर रहे हैं, अगेन Carbon and निकाल रहे हैं. sulfur cycle. हाँ. सल्फर दैट इज नॉट मच स्क्वायर. ओके, I will So, give that is also material also I will give. Okay, how much right you have to, I will also give the material. Okay, thank you, in the sir. group I will send. Okay. Okay, Thank you, any sir. other doubt? Any other doubt? No, sir. No, sir. Okay, so shall we close the class? Yes, sir. Yes, sir. Okay, हाँ so ऐसे you अच्छा है। can. ଏଠୁ ପଳେଇ ଆସିଛୁ ସେଠି ତୁ କରି କରି ଆସିବ ଉଠୁ ଶିଖିବ କେମିତି କରି ବାପା ହଉ
You have joined the call. There are two other people in the call. Your camera is on. Your microphone is on. Your app is lowered. Visitors are in this meeting. Open the people list to see the visitors.